मैं हर समय बोलता हूँ एडवर्टाइजिंग द ओनली इंडस्ट्री द एंटायर वर्ल्ड नोज अबाउट इट, ऐसा लगता है। आप एक क्रिएटिव बनाओ, रास्ते में साइकिल वाले को बोलो इसमें क्या करना चाहिए बता देगा, बट आप कंप्यूटर खोल कर बताओ कि क्या करना है तो बोलेगा मैं कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हूँ। बट एडवर्टाइजिंग में सबके पास ओपिनियन है। सबसे पहले सर मेरे ऑडियंस के लिए इफ यू कैन जस्ट ब्रेक डाउन इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज ब्रांडिंग और व्हाट इज मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग इज साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स। कैसे ब्रांडिंग और मार्केटिंग सेल्स में हेल्प करता है। So purpose of advertising can be different, not always the sales. मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स इनका जो पूरा परसेप्शन है एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग का वो सिर्फ सोशल मीडिया पे सिमट गया है। That my customer or my client is not my client. My client का client is my client. वो बचपन में बोला करते थे हमें कि mind your own business. In our industry, is that you mind everybody else's business than your business. Sir, what would be ideal career path of somebody who chooses advertising or branding as a career, both on the agency side and as well on the brand side? मैं हर समय एक मेटाफर देता हूँ, कभी बोला है getting a good career is like getting married. How do you feel AI is changing the industry, especially in advertising and marketing and branding? Interestingly, I can tell you there are certain things which AI can't do. Acha, sir, one personal mantras to success that you would like to give to the audience. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, टेल मी वन थिंग, आज आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी ब्रांड का, हाउ डू यू मेक अ डिसीजन अबाउट इट। मोस्ट पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय ब्रांड्स, दे बाय द स्टोरीज बिहाइंड द ब्रांड। एंड हाउ डू यू क्रिएट अ स्टोरी बिहाइंड द ब्रांड। टुडे वन ऑफ द मोस्ट fulfilling career in India is brand management and advertising. A lot of people, especially youngsters, want to make a good career in branding and advertising. तो इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं an OG who has worked with a lot of brands, who is a legend in the field of advertising and branding, and somebody who can take you from confusion to clarity when it comes to branding and advertising. So stay tuned. Sanjay sir, welcome to the studio. Welcome to M2S Career Mantras. सर, ऑनेस्ट कन्फेशन, आज का ये पॉडकास्ट जैसे मैं आपको अभी बता रहा था बिफोर दी कैमरा स्टार्टेड, दिस इज़ अ मैनिफेस्टेशन फॉर मी। आई वांटेड यू टू ब्रिंग टू दी पॉडकास्ट ताकि हम बहुत सारी बातें कर सकें ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, इन सब के बारे में। और स्पेशली जो हमारी ऑडियंस है, जो यंग क्राउड है हमारा, जो कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से थोड़ा ग्लैमर से फैसिनेट होता है, तो उनको हम बता सके कि हाउ दे कैन मेक अ करियर इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। Thank you very much, Jitan, for having me here, and I will try to do my best with my limited knowledge and experience which I have. Sir, you are a guru in the field of branding advertising in Gujarat and probably one of the best in India. सबसे पहले सर मेरे ऑडियंस के लिए if you can just break down in simple words what is branding or what is marketing. Yeah. See, everyone who produces a product also wants to communicate that I got the best product in the world. For example, when Steve Jobs brought in the best of the computers in the world, अगर वो अपने पास ही रखता, बताता नहीं किसी को, तो कैसे पता चलता आपको? So the profession of advertising is to communicate and communicate with a purpose. While communicating, we also make sure that there's an image which has been built up. Giving you an example, the watch which you are wearing or watch which I am wearing gives the same benefit. You see the time, I see the time. But you buy a Rolex watch and I wear a Titan watch. The price difference is huge. Why are you then wearing a Rolex watch? Because Rolex also gives you a status symbol. It gives you an image and it gives you the probable thing which you had always desired. Right? But actually the benefit is just to see time. So people don't wear the watch to see the time, but to project that unka time aa gaya. Correct. Right? So this is what the profession of advertising is, that to communicate and create an image. And that image, when they are creating, there is a need in the market. They will not create an image which is not desired in the market. So this is in simple language. We are into the profession of creating an image, a reputation, or a perception of any product which is to be sold in the market. A. Secondly, how do I create it? By communication. Correct. So what is the communication? Is advertising, which we do. And this advertising can be done through various means. It can be on television, it can be on print, it can be on hoardings, it can be now on social media. So this is the tools which we use. करेक्ट। Yeah. सर, अब इस पे इसी पे एक चीज़ आगे बढ़ते हैं। सो अगर मैं मार्केटिंग एज अ ब्रॉड टर्म, उसके अंदर हमने ब्रांडिंग बात की, एडवर्टाइजिंग बात की, और ना हमारे यहाँ पे लूजली, इंडिया में लूजली सेल्स भी बहुत यूज़ होता है। पीपल डोंट नो द डिफरेंस इन मार्केटिंग एंड सेल्स। सो आई वांटेड टू
आई वांट यू टू, आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि कैसे ब्रांडिंग और मार्केटिंग सेल्स में हेल्प करता है. Yeah. See, it's a part. Marketing का एक part है sales. Sales marketing is a broad factor which includes your product designing, your pricing, your promotion, and your distribution. And sales becomes an important element to go and sell it actually in the market. Advertising may not always help you in sales because advertising का एक objective होता है. अगर objective sales का है, then the advertising has to say about sales. Like एक के साथ एक free है. That is your objective of selling. But sometimes that key, my objective of advertising or communication is to accept. For example, you have not yet accepted the product category. So the communication will be that at least you accept it. Accept करने के बाद वो खरीदेगा ना. मैं एक नई प्रोडक्ट लेके आता हूँ इंडिया में और आपको बेचने की कोशिश करता हूँ, आप नहीं खरीदोगे unless I tell you the benefit. The first stage is that I should make you aware of the product and then try to make it accepted in your life and then you start buying it. Correct. So purpose of advertising can be different. So you have to first decide with the product. It's not always the sales. Sales comes in turn. The objective is sales ultimately, but before that, there are stages which has to be taken care of. So advertising has its own purpose, Correct. right? Correct. So you have to decide on the purpose, you have to decide on the objective, and then come out with an ad. करेक्ट. हाँ, आप मुझे बता रहे हैं कि द पर्पस में नॉट बी सेल्स, इट मे बी अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस. वो मुझे वो याद आया, इट वाज अ वेरी फेमस कैंपेन, दो बूंद जिंदगी की. आई थिंक Yeah. दैट वाज मोर ऑफ एन अवेयरनेस कैंपेन. Awareness campaign, and they used to say that how important it is. It is not to sell; it is to accept that fact. Correct. So there are various purposes. So usually a good agency will first think about the objective of this communication which you are putting out. Why I'm saying communication? Because if I use the word advertising, you may not get a little bit of confused. But if I say in simple language, communication, that becomes easy to understand. So Correct. advertising is communication. Why are you communicating? So that is the first answer you should give. What is the objective of this communication? For example, Ganesh Chaturthi की आप ad निकालते हो. What is the purpose? To wish someone, not to sell. Correct. Maybe there is a sale फंडा कि आज गणेश चतुर्थी में आपको स्पेशल ऑफर देंगे. But primary objective is to wish someone. To wish someone. So that objective has to be very very clear. करेक्ट. सर, हमने ये बात की, जैसे आपने बताया कि एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट टू सेल्स. हाउ डस, जैसे मेरे बहुत सारी ऑडियंस फ्रेशर्स हैं, यंगस्टर्स हैं. अभी आज मैं जब बात करता हूँ, लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है, मुझे पर्सनली फील होता है, मे बी रॉन्ग ऑल्सो, कि मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स, उनका जो पूरा परसेप्शन है एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग का, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे सिमट गया है. I don't see people talking about ATL campaigns, BTL campaigns, outdoor hoardings. At least यंग जनरेशन बात नहीं कर रही है. हालांकि ऐसा नहीं है कि होर्डिंग्स खत्म हो गए सिटी से, बट पता नहीं वो जो यंग जनरेशन है ना, उसका पूरा एक फोकस सिर्फ सोशल मीडिया में भी मोर और लेस खाली इंस्टाग्राम, यूट्यूब और मे बी स्नैपचैट, इस पे आके फंस गया है. फेसबुक तो कोई बात ही नहीं करता है अभी, ट्विटर भी लोग बात नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है. हाउ डू यू सी द चेंज इन द इंडस्ट्री दैट इज हैपनिंग? See, this is called half-baked thought of the advertising industry. Advertising is science, art, and commerce, right? Social media is a medium to communicate. But what do you want to communicate? How do you decide that? That is to be thought first. What should be the message? See, when I am selling, for example, an edible oil brand, now edible oil में आपको पता चलेगा 10 edible oil वाले बेच रहे हैं और सब अपना अपना communication कर रहे हैं. So what should be my communication? Who is thinking about that? And that communication has to be relevant to the target audience. Are we going and meeting the target audience to check with him what is he requiring? Why will he buy? My first question is that if you buy my brand instead of XYZ, I will give you that benefit dash. What is that benefit? That has to be thought first. So this all homework has to be done before you start talking about social media and hoardings and television. वो तो मीडिया में जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करेंगे, बट आपको कम्युनिकेट क्या करना है वो तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ना. और क्या करना है वो तभी पता चलेगा जब आप कंज्यूमर से मिलते हैं. आई ऑलवेज से जितेन दैट माई कस्टमर और माई क्लाइंट इज नॉट माई क्लाइंट. माई क्लाइंट का क्लाइंट इज माई क्लाइंट. करेक्ट. Right? If I'm selling an edible oil, then my housewife who is buying that edible oil is my client. You are not my client. You may like it or not like it. But if my consumer who is buying from you likes it, then he is my customer. वो तो उसके लिए मुझे उनको जाके मिलना पड़ेगा ना. मैं जिसको कम्युनिकेट कर रहा हूँ उससे नहीं मिलता हूँ. तो टेल मी हाउ मेनी यंगस्टर्स गो एंड मीट दैट कस्टमर्स. अगर मैं अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट लिया है मैंने, तो कितने लोग जाके वो अफोर्डेबल हाउसिंग के कस्टमर से जाके मिलते हैं. हाउ डू नो व्हाट लैंग्वेज दे यूज, हाउ डू नो व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दे अंडरस्टैंड, and you just go randomly in a pre-stated one and you start putting it on the social media. नहीं हो सकता है सोशल मीडिया वो देख ही नहीं रहा हूँ. करेक्ट है ना, तो कैसे करोगे आप? तो दैट डिटेल रिसर्च हैज टू बी डन एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री. वो बचपन में बोला करते थे हमें कि डोंट
mind your own business. In our industry, it's that you mind everybody else's business than your business. So you have to know Yes. how, what to eat, what they eat, what they think, how do they consume or how do they spend. So you have to mind everybody's business. So then only you can, कहते हैं ना, पारंगत in that industry. Otherwise you will not. करेक्ट सर है ना आपने मतलब बिकॉज यू एंड मी बोथ सी लॉट ऑफ सीरीज अगर आपने मैडमेन सीरीज देखी हो हाँ, तो advertising. हाँ एडवर्टाइजिंग के ऊपर है तो मैडमेन में ना वो यूएस गवर्नमेंट है ना वो सिगरेट्स की एडवर्टाइजिंग पे बैन लगा देती है ऐसे बोलती है कि आप हेल्थ बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते हो सो सिगरेट वाले ना वो परेशान हो जाते हैं कि यार अभी हम अपनी मार्केट कैसे करेंगे अपनी कम्युनिकेशन कैसे करेंगे तो डॉन ड्रिपर के पास जाते हैं तो डॉन ड्रिपर बोलता है कि ये तो अच्छी बात है तो बोलता है कैसे अच्छी बात है हमको तो इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट ने बैन कर दिया अभी वो भी यही सेम चीज़ बेच रहा है मैं भी सेम चीज़ बेच रहा हूँ मैं कैसे बेचूंगा अभी तो डॉन ड्रिपर बोलता है अच्छा मुझे अपना प्रोसेस बताओ कैसे बनाते हो तो फिर है ना वो बोलता है कि मैं टबैको लेके आता हूँ फिर उसको रोस्ट करता हूँ फिर उसको ये पैकेजिंग करता हूँ ये करता हूँ तो बोलता है बस यही है अब हमारा टैगलाइन होगा इट्स रोस्टेड तो यू आर डिफरेंशिएटिंग योर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर सिगरेट्स Otherwise, if you start talking the same thing, you're selling Yes. him, na? You're Yes. selling the other product which is already available in the market. You are reminding me Correct. as a consumer कि यार वो प्रोडक्ट कोई आप जब बोलते हो तो मुझे वो प्रोडक्ट याद आता है. करेक्ट आपको डिफरेंट करना है ना, किस तरह से करोगे आप? करेक्ट करेक्ट नहीं तो आपने जैसे बोला कि आपने अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोडक्ट लिया है बट यू आर वेरी क्लियर कि वो बिल्डर आपका क्लाइंट नहीं है जो बिल्डर का घर खरीद रहा है वो आपका क्लाइंट खरीदता है और हमने किया है. Yes, जितेन, yes, yes. we used to go on every Saturday and Sunday and meet the ठेला वाला, Hmm. वो दो रिक्शा वाला, because he's going to buy that affordable housing with due respect to him. He will buy that 12 लाख का मकान. Hmm. उसकी जिंदगी निकल चुकी होती है उसको खरीदने में, पहली बार खरीद रहा होता है. उसका प्रॉस्पेक्ट है और आपका खरीदना. आप बंगलो खरीदते हो, आप तीसरा बंगलो खरीद रहे हो, आपका प्रॉस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ बंगलो विल बी एंटायरली डिफरेंट Yes, देन हिम. yes, सो हैव टू गो एंड अंडरस्टैंड हिम yes, कि किस तरह का है, क्या चाहिए, उसके एस्पिरेशंस क्या है लाइफ में, correct, and according to that I will use his language and then communicate to him so that your advertising, your communication becomes more successful. correct. रैंडमली नहीं कर सकते हो. मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं अब तक बंगलों की ऐड करता था तो आई एम मास्टर इन रियल एस्टेट एडवर्टाइजिंग. नो, Yes. एवरी कस्टमर इज डिफरेंट. Every product category is also different. डिफरेंट. Yes. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री टू वर्क फॉर. सर बहुत पहले ना आपने मुझे एक बात बताई थी कि इवन इवन फॉर द सेम प्रोडक्ट कैटेगरी द बाइंग लॉजिक ऑफ वन पर्सन में डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन. फॉर एग्जांपल मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ कि ये आई एम अगेन नॉट जनरलाइजिंग बट बॉयज और मेल्स बाय प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द फीचर्स गर्ल्स और women not everyone again not generalizing they buy product based on the emotions so मतलब ये आपने मुझे एक बार बताया था कि हम कई बार ये भी देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की डेप्थ में जो खरीद रहा है और जो यूज कर रहा है उन दोनों के पर्सपेक्टिव भी अलग होंगे. हाँ बिल्कुल, इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इंसाइट. यस. आप अगर गूगल फॉर्म लेके जाएंगे ना तो नहीं बताएंगे. हाँ. वो गलत ही आंसर आएगा. हाँ. But when you mingle around with them, when you meet them, when you interact with them, you come out with a lot of insights which are not spoken. But you have to understand that this is the insight, and then take those insight and then use it in communication. तो उनको लगता है यार ये अपनी बात कर रहा है. करेक्ट. ये कोई अपनी बात कर रहा है यार. Like you know, a lot of times I give the example that when a female meets another female for the first time in the morning, with due respect to all the female, I'm not generalizing as you rightly said, they observe what she's wearing. 100%. Right? But the male don't do that. No. Male usually forget कि क्या खरीदा. But females will always remember उसने earring कौन सा नया लिया, उसके hair style नहीं है, उसने sandals नया लिया है. She says hi. Hi. But at the end of the day, she's understanding कि यार ये कहाँ से लिया. Right? Whereas the guys don't do that. That insight can be used, and many of the brands have done it. If you remember, many years back there was an ad called भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे. Yes, yes, yes. Right? Yes. तो भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से, it means उसकी साड़ी का सफेद होना मुझे मैटर करता है. Matter करता है. Yes. Right? Lot of brands have used this insight. Correct. Right. Sir, I have seen this myself. So in my earlier job, I was based in Delhi. So मैंने वो DLF Emporium Mall में Zara का outlet है. So मैं से I had gone there. Just मैं तो उधर टहल रहा था, but I went to Zara shop. तो वहाँ पे 2 ladies were checking out the same product. मतलब अलग साइज होगा लेकिन सेम एकदम डिटो सेम था, खाली साइज डिफरेंट था. तो एक लेडी ने बोला यार ठीक है बट इतना अच्छा नहीं रख दिया. तो दूसरी वाले ने भी रख दिया. मैं उसको लगा कि यार उसको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कैसे खरीद सकती हूँ. एंड आई हैव सीन दिस विद माय आईज. Yeah. So these are not on Google Forms, na? Yeah, this will never come So on the Google new Forms. aspirants in the industry should understand everything can't be answered on Google Forms. Yes. You have to go there. If you want to create an innovation, you have to go beyond Google's. Yes. Right? Yes, So yes. you go there, understand them, and you will realize कि there is something यार. Like बहुत सालों पहले एग्जांपल दिया करते थे कि you know washing machine पंजाब में sold maximum. वॉशिंग मशीन बहुत बिकती थी. लोगों को लगा यार इतने कपड़े गंदे होते हैं क्या.
तो पता लगा कि वो कपड़े के लिए नहीं लस्सी बनाया करते थे लस्सी बल्क बना में, के so that was sold, so you don't know what they are using it करेक्ट for. So these are some example which has been traditionally spoken. So the crux क्या है, you have to understand the consumer the best. The more you understand, more you can well communicate. मैं अगर आपको अच्छी तरह जानता हूँगा तो मैं आपके साथ कम्युनिकेट ढंग से कर सकता हूँ ना, पर मैं आपको जानता ही नहीं हूँ तो मैं आपको ऐसा कम्युनिकेट करूँ जो आपको समझ में नहीं आता है, आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, तो आप कैसे कम्युनिकेट, आप कैसे एडवर्टाइज सक्सेस को बोल सकते हैं? यस दैट इज द थिंग. सर बिकॉज हम ये इंसाइट्स की बात कर रहे हैं, सो जैसे हम लोग MBA में तो हमको वो सब्जेक्ट्स आते हैं ये मार्केट रिसर्च और स्टैट्स, तो ये क्या ज़रूरी होते हैं एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए कि अगर मेरे को अगर एडवर्टाइजिंग में आगे बढ़ना है तो मुझे मार्केट रिसर्च अच्छा आना चाहिए? या बिकॉज सी ये आपका क्यूरियोसिटी है ना, विदाउट रिसर्च हाउ विल यू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर, ये बहुत जरूरी है. आप थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल कितना करते हो मैं मानता हूँ. आई टेल ऑल माई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, they have their own knowledge, they are academically very sound, but always remember whenever a student or when an aspirant is studying, they should understand कि ये जो पढ़ा रहे हैं इसका रिलेवेंस मेरे मार्केट में मेरे करियर में कहाँ होगा. So the moment they start thinking that way, their questions will be according to that. Correct. And that it can be helpful. मार्केट रिसर्च के टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से करते हैं, किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन देन यू टू गो एंड बी इन द मार्केट ना. हम तो सेल्स से डरते हैं. हाँ सेल्स इज द बेस्ट ट्रेनिंग फील्ड, आई कैन नेवर से. सर आप एक बार ना कैमरा में देख के बोलिए, लास्ट वीक मैंने अचल सर से भी यही चीज़ बुलवाई है मैंने, मैं अभी भी ऑडियंस को चाहता हूँ कि आप यही ऑडियंस को बोले कि सेल्स इज द बेस्ट. नहीं, सी if somebody considers कि I have been a bit of somewhere in the industry is because of the sales. Sales teaches you everything. Sales is the best career you can ever have. You Yes. should not shy away. I have seen people coming to marketing field, MBA students and saying कि सर मार्केट में जाना पड़ेगा क्या? मैंने कहा मार्केटिंग में वर्ड भी मार्केट है, वर्ड है ना मार्केट, करेक्ट तो आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा. And the more you go, more you know, you'll be tackling those objections which a salesperson does, and you become more perfect. I may have the best of the creative today, मेरा बहुत अच्छा creative है, but I don't know how to sell it. करेक्ट. And sales is not a bad job. आपको लगता है सेल्स का वर्ड टर्म बहुत गंदा है, नहीं, सेल्स से ही सीखते हो. आप क्या कर क्या रहे हो, मतलब आप जब एडवर्टाइजिंग करते हो तो क्या कर रहे हो, है ना, यू आर सेलिंग एन थॉट, यू आर सेलिंग एन आइडिया, यू आर सेलिंग एन कॉन्सेप्ट, बट यू नीड टू नो हाउ टू सेल. करेक्ट. मैं तो सर हमेशा बोलता हूँ सेल्स इज द ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. पैसा Without आएगा, that, nothing is going to be नथिंग इज there. गोइंग टू बी देयर. So I have पैसा to- आएगा तो ही शरीर चलेगा. so I have to respect that. I have करेक्ट. to salute that. If Yes. people who go and sell, यस maybe they are calling something else, but actually end of the day underline तो ये है कि आप सेल्स कर रहे हो. सर इसमें भी ना बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को चीज़ दिमाग में आई जब हम बात कर रहे सेल्स की. अगेन दिस अगेन द मैटर ऑफ परसेप्शन. आप आज बॉलीवुड की सीरियल्स देख लो या हमारा जितना भी कंटेंट बनता है इंडिया में, उसमें सेल्स को ऐसे दिखाते हैं कि समबडी वो झोला लेके घर घर जाके दरवाजा नॉक कर रहा है, which may be the reality some 30-40 years back, but today it's completely different. आज sales has become an evolved process. You go and meet top CXOs. I was in sales before I started my own thing, and I used to go and meet CXOs, and that was a completely different level of sales. I think जो आप बोल रहे हैं जो कम्युनिकेशन है ये बिठा दिया गया हमारे सबकॉन्शियस में. मैं उस इंसान को रिक्रूट करूंगा जो झूला लेके दरवाजे जाता है. बताओ क्यों? द रीजन इज दैट ही इज एबल टू टेक द रिजेक्शन एवरी टाइम. Yes. When he goes to a building and every door he knocks and door खोलते बोलते नहीं हमको जरूरत नहीं है, and he closes the door and say have a nice day and goes it with an hope that 25th door जब खुलेगा तो शायद कोई सेल्स वाला निकलेगा. आप सोचो उसका मेंटल बैंडविड्थ कितना तगड़ा होगा. करेक्ट. हम तो बहुत नाजुक हो जाते हैं ना, हाँ. एक जगह से रिजेक्शन किया तो हम क्लाइंट को गाली देने लग जाते हैं. हम ऐसा बोलते हैं क्लाइंट बराबर नहीं है, क्लाइंट को समझ में नहीं आता है, बट थिंक अबाउट दैट पर्सन हु इज गोइंग डोर टू डोर एंड हैव दैट रिस्पेक्ट. यार ही हैज गॉट दैट बैंडविड्थ, मेंटल बैंडविड्थ कि उसको सहने की शक्ति कितनी होगी. उसको मैं बोलूँ जाओ ओडो में जाके बेच के आओ तो उसको डर नहीं लगेगा. मैं अगर किसी नाजुक आदमी बोलूँ तो पहले पूछेगा सर रिक्शा में जाना है कि कार में जाना है, उबर में जाना है, एंड हाउ द डे विल बी डिसाइडिंग कि कब जाना है, सर कौन सी तरीके होगा. यू आर लूजिंग योर टाइम. अ गुड सेल्स पर्सन विल नेवर डू दैट. Yes. Will go. He is like that फौजी यार who goes and fights. हाँ. Never say no. हाँ. So आप सोचो कि ऐसे बंदे अगर आपके साथ हों हाँ. टीम में, Yes. किसी चीज के लिए ना नहीं होगा ना. करेक्ट. तो- सर इवन मतलब ना ये आई हैव सम पीपल इन माय टीम आल्सो, मतलब सो देयर आर सम रिक्रूटर्स जिनको आप टफ सेट ऑफ प्रोफाइल दे दो, दे विल नेवर से नो, राइट. सो उनको कोई भी प्रोफाइल दे दो, वो ढूंढ ढांड के चैट जीपीटी, जेमिनी, गूगल करके प्रोफाइल निकाल के देंगे. हाँ. एंड देयर आर सम रिक्रूटर्स उनको इजी प्रोफाइल भी दे दो, वो 3-4 कॉल लगाएंगे एंड दे डोंट गेट अ प्रोफाइल. सर से तो प्रोफाइल ही नहीं मिल रही. They will find out the reason of not working. They will never find out a reason to work.
Yes, Yeah. yes, yes. So there are extremes which you find in every organization, and you have to Yes. deal with them and motivate them to work. Sir, what would be ideal career path of somebody who chooses advertising or branding as a career, both on the agency side and as well on the brand side? Very good question. Is that I have few thoughts on that with my experience of recruiting people. The first thing you should have is the knowledge. Basic knowledge तो होना ही चाहिए. That is your first parameter. कि if I require an MBA or I require a BBA, fine, I need it. I don't need a topper. I need who has a basic knowledge. Second, he has to have curiosity. Like I said, I should mind others' business. The curiosity has to be there. He should find answers of everything which is there. If he's not curious, he's not going to make a good career into advertising. Right? Second. Third is that the communication skill has to be great. Because he is going to communicate to people. Giving an example, if we are creating an ad film which is costing you 60 lakhs or 70 lakhs, that ad film is not made and then sold. First, the concept is communicated, the script is communicated, the story has been told, and then the check of 70 lakh gets signed. So, how do I communicate? Everyone sitting in the boardroom should understand the same way, the way I want to communicate. I cannot take for granted key, because, for example, I give you like, I say there is a girl who is coming out of the beach. And after that, after making the story and all that, I say कि इसका cost तो 70 lakhs रुपए लगेगा. There may be a person who's sitting in the boardroom who has not gone beyond Valsad. So he will think Tithal beach से निकलने के लिए इतना पैसा क्यों? Correct. But I'm talking about the Mauritius beach, Yes. Blue Sea. So that has to be explained properly. That Correct. communication has to be so strong that every person sitting in the conference room should understand the same way I'm. So he has to be a good storyteller. So if my communication is not good, how do I make people understand? Secondly, मैं communication consultant हूँ ना, आपका communication partner हूँ आपका, तो communication नहीं आता मुझे, तो that is foremost. And third, which is relevant to all industry, you have to have that attitude of working. ठीक है ना? अंडरस्टैंड द कंज्यूमर. जाके फील्ड में खड़ा होना पड़ता है, जाके लोगों से बात करनी पड़ती है, किसी भी तरह का काम हो सकता है ना. तो अगर वो एटीट्यूड आपके पास है तो वो अच्छा है. मैं हर समय एक मेटाफर देता हूँ जब भी बोला है, गेटिंग ए गुड करियर इज़ लाइक गेटिंग मैरिड, राइट? सो व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड, यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन. उसको कौन सा खाना पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, कौन सा हेयर स्टाइल पसंद है, एंड you love that person and you start getting married. I always says that whenever you do such thing, also find out the demerits. So when you know the demerits, it never comes as a surprise to you. Yes. And the relationship goes long. Yes. Same way, in a career choice, I may tell you the glamorous thing in the world. कि एडवर्टाइजमेंट हम तो शूट करते हैं, ये कैंपेन्स करते हैं, हमारा ऑफिस बड़ा फंकी है, एंड यू नो बहुत स्टेटमेंट लिखा है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, 2 बजे तक काम करना पड़ता है. Correct. और डेडलाइंस होती हैं, 6 बजे बाद ब्रीफ आएगा, सुबह जाके प्रोड्यूस करके देना है उसको. Are you ready for that? If you are ready for that, it doesn't come as a surprise. Your relationship with advertising industry will be for long. You should be ready. You are irrespective of that कि you are a male or female. Deadlines कभी भी आ सकती है. अखबार आपके लिए रुकेगा नहीं. Correct. अखबार छपेगा तो छपेगा उस टाइम पर. आपकी ऐड के बिना छपेगा, लेकिन छपेगा. Correct. तो आपको डेडलाइन करना पड़ेगा. आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे को आइडिया नहीं आ रहा अभी, मैं तो 4 से 5 तक ही आइडिया सोचता हूँ. नहीं, आपको डेडलाइन दी है, बंदूक रखी है सर पे, आपको आइडिया लिखना ही पड़ेगा. और ये भी जरूरी नहीं है एज ए ह्यूमन पर्सन दैट लास्ट टाइम आपने अच्छा आइडिया दिया था तो इस बार भी अच्छा आइडिया आएगा. हाँ. तो आइडिया तो कुछ भी अच्छा भी खराब भी हो सकता है. Yes. आप जैसे ही अच्छा आइडिया दो तो मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है. हाँ. राइट? तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अच्छा आइडिया दो. तो ये सब जो स्ट्रगल हैं, ये सब जो डीमेरिट्स हैं, इफ यू नो इट कि एडवर्टाइजमेंट आई एम रेडी, आई विल, लॉट ऑफ पीपल कम टू मी, सर आई गिव आइडिया, इट गेट्स रिजेक्टेड. नो, यू आर टू यंग टू गेट ऑल एक्सेप्टेंस डन इन द इंडस्ट्री. आप आइडिया दो, आपको पता चलेगा कि गलत आइडिया दिया है, उसको रिफाइन करोगे आप, और हो सकता है 10वें ऑल्टरेशन के बाद यू गेट द बेस्ट आइडिया. बट यू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने एक आइडिया दिया है और वो रिजेक्ट कैसे हो गया. सो आइडियाज तो हर रोज रिजेक्टेड होंगे. यू विल बी ह्यूमिलेटेड एवरी डे, है ना? हमारे टाइम पर तो वी वर रिजेक्टेड फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस रूम. मुंह पे पेपर फेंके गए और बोला कि ये आइडिया बकवास कहाँ से लेके आए हो. 6 बज रहे हैं शाम को, बोलते हैं 9 बजे तक घर पे नहीं जाओगे जब तक नहीं करोगे. आर यू रेडी टू डू दैट? नो. अभी तो आप बोलोगे टॉक्सिक है सर. हाँ. मेंटल क्या बोलते हैं वो, आपका पैनिक अटैक आ जाता है. Panic attack आ जाता है. तो हमारे साथ तो रोज ही आना चाहिए फिर. Yes, yes. सर हमारी तो बात ही अलग थी. मतलब मैं तो दिवाली के दिन भी नाइट शिफ्ट की हुई है मैंने. यस. मैं सर कल एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट सुन रहा था. जैसे जस्ट आई जस्ट स्लाइटली डिविएट फ्रॉम द टॉपिक, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी ऑडियंस को कम्युनिकेट करना, द इम्पोर्टेंस ऑफ फेलियर. तो जैसे ना मैं कल एक पॉडकास्ट सुन रहा था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द पॉडकास्टर. तो उसमें ना उसने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली
उसने बोला आज हम लोग एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, तीसरे में गिव अप कर देते हैं कि नहीं हो रहा है। बोले तुम अगर इसको ना अलग वे से देखो, और तुम बोलते हो कि यार आप 2 या 3 बार फेल हुए तो आप क्या करते हो कि यार क्लाइंट खराब है, फलाना खराब, वेंडर खराब है, क्लाइंट खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान ही खराब है, गॉड ही खराब है जो मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है। He said, don't look at it from this way. Look at it from the other angle कि अगर कल भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए और भगवान तुमको बोले कि बेटा तू 9 बार ट्राई कर, 10वीं बार सक्सेस हो जाएगा, और तुमको ये श्योरिटी आ गया कि मैं 10वीं बार तो सक्सेस होऊंगा, तो तुम वो 9 बार ट्राई करोगे कि नहीं करोगे? 100% करोगे, बिकॉज यू नो कि 10वें में तो सक्सेस आना ही है। तो बोलता है फिर यही सोच के काम करो ना कि कभी ना कभी सक्सेस आना ही है। तुम दूसरे तीसरे में तुम यही सोच रहे हो कि मेरी किस्मत खराब है, भगवान खराब है, मैं खराब हूँ, दुनिया खराब है। Yeah, see, Thomas Alva Edison is said to be inventing the bulb on the 10,000 try. 10,000 times. But he says that 9,999 times I learned how bulb cannot be made. Cannot be made. Yes. So it's an attempt. It's not a failure. हाँ. It's an attempt which you made, Correct. not the failure. Correct. So either you say hi to failure or you say hi failure. Choice is yours. Yeah. This is the punchline. I'll request my editing team. Either you say hi to failure or hi failure. Failure, yeah. So इसमें रील निकलनी चाहिए निखिल. Secondly, when difficulties comes in my sales career, a lot of difficulties which came, and I often give this example. Many of the podcasts. These are a few examples which I give. Like the first day of your job, and I had joined my British multinational, Every India. Very strict, है ना? Shoe polish होना चाहिए, nail cut होना चाहिए, hair cut होना चाहिए. So I was a person from Udaipur, a small time or a town, who came to Ahmedabad and thought कि मैं आ गया हूँ, अब दुनिया चेंज हो जाएगी. जो ब्रिटिश मंडी में 100 साल से है, उनको सोचते हो कि मैं आऊँगा तो मैं नए कपड़े, नए ड्रेस पहन के मैं बैठा हूँ रिसेप्शन में एज ए शो स्टॉपर कि भाई दुनिया में अब आ गया हूँ मैं, डोंट वरी, आपकी कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाएगा. ये हर इंसान को होता है पहली बार जब जॉब कर रहा होता है ना. घर से आपको विदाई करते हैं, मतलब ट्रेन में छोड़ने आए थे सब लोग कि यार ये बहुत युद्ध करने जा रहा है, जीवन में कुछ करके आएगा. तो ये आपके दिमाग में बैठ जाता है कि आप कुछ करके आओगे यार. तो आप बैठे रिसेप्शन में 15-20 मिनट तक किसी ने बुलाया नहीं. 15-20 मिनट के बाद मुझे बोला कि आपका एरिया मैनेजर कॉलिंग. सो फ्रॉम द रिसेप्शन टू द एरिया मैनेजर का ग्लास का कैबिन, एंड यू हैव टू वॉक डाउन टू दैट ग्लास का कैबिन. और चारों तरफ सेक्रेटरियल पूल बैठते हैं, सारे लोग काम करने बैठते हैं. तो आप एंट्री करते हो, आपको लगता है आपकी जो शो स्टॉपर होता है ना, उसकी लाइटिंग आपके ऊपर है और आप रैंप में चल रहे हो, ऐसा आपको फील आता है. तो चलते चलते जब मैं दरवाजे में गया तो मैंने नॉक किया और मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर. तो जैसे मैंने गुड मॉर्निंग बोला, माय फर्स्ट डायलॉग ऑफ माय कॉर्पोरेट लाइफ वाज गेट आउट. माय बॉस सेज गेट आउट. And he's never met you. You are meeting him for the first time. No, I met him in the interview. हाँ, इंटरव्यू के बाद. उसके बाद पहला शब्द मेरा कॉर्पोरेट लाइफ का ये है कि गेट आउट. मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या किया. मैं इधर उधर देख रहा हूँ तो सब हंस रहे हैं कि यार मुर्गा फंसा है, ऐसा हुआ. तो मेरे को समझ में नहीं आया. वाज अमेज्ड. देन आई सॉ इट हिम. ही सेड कम इनसाइड. बोल क्या हुआ, तुम चोरी किया? बोले नहीं सर. तो रो के क्यों बोलता गुड मॉर्निंग? ढंग से बोलो. जब तुम क्लाइंट से मिलोगे तो ऐसा विश करो कि लगता है कि गुड मॉर्निंग विश कर रहे हो. गो बैक एंड कम बैक. सो आई वेंट आउट, आई केम इनसाइड, सर गुड मॉर्निंग सर. बोले हैव अ सीट. दैट वाज योर लेसन नंबर 1. Yes. Can you take it now? Today's generation can they take it? No, they can't. नहीं ना. अपने इज्जत का सवाल है. Yes. इज्जत बनी कहाँ है? इज्जत बनाओ कॉर्पोरेट में, फिर इज्जत का सवाल होगा ना. Correct. ठीक है. सो या तो वो कहते हैं ना, मैं कई बार कहता हूँ कि भाग लो. भाग लो का मतलब है पार्टिसिपेट या भाग लो. दोनों आपके ऊपर है. चॉइस इज योर्स. भाग लो या भाग लो, पार्टिसिपेट और रन अवे. द चॉइस इज योर्स. एंड एवरी करियर इट विल हैपन. एवरी करियर इट विल एवर हैपन. Correct. So you have to take care of it. You have to do that. अगर आप frustrated mind से काम कर रहे होंगे, you will not be able to come out with good creative output. Yes. You should love creative. In advertising, you have to be there. You have to be curious. You Correct. should come out with something innovation. Sir, interestingly, आपने बहुत अच्छी बात कही. मतलब अभी कृणाल शाह has become the head of WhatsApp. Yeah. उनके पुराने बहुत सारे वीडियोस में यही चीज़ है कि आज की जो इंडियन जो यंग टैलेंट है, दे आर वेरी वेरी बॉदर्ड अबाउट कि मेरी इमेज क्या है. बोलते हैं भाई तुमने किया क्या जो तुम्हारी इमेज बनेगी या तुम्हारी रेपुटेशन बनेगी. इमेज बनाओ. हाँ बनाओ तो सही. पहले इज्जत नहीं बोलते ना, इज्जत मैंने इज्जत नहीं बनी आपकी, आप इज्जत बनाओ, उसके बाद इज्जत की जरूर बात करना. Yes. You don't deserve that now. Correct. Yesterday I was at a meeting at a very few set of people which was only by invite. तो ना the gentleman who was talking and he was very senior fellow. I can't name him. तो उन्होंने मुझे यही सबसे बात कर रहे थे कि बिजनेस का. तो कोई बोले यार मेरा 3rd जनरेशन बिजनेस है, 4th जनरेशन बिजनेस है, कोई मैं 10 साल से कर रहा हूँ, कोई 20 साल से कर रहा हूँ. तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली. तो उन्होंने बोला कि
उनके पास है ना एक बंदा आया मिलने के लिए, तो उस बंदे ने उनको ऐसे बोला हाय, हाय करके, एंड उसने बोला हाँ कैसा है, तो उन्होंने ऐसे कैजुअली पूछा हाँ यार बिजनेस कैसे चल रहा है, तो उसने बोला यार बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि फिर बंद कर दो, तो बोला अरे नहीं मैं ऐसे कैसे बंद कर दूँ, 3 जनरेशन चल रहा है। तो उन्होंने फिर तो डेफिनेटली बंद कर दो। तो बोले सर आपका दिमाग खराब हो गया है? तो बोलते देखो आप 3 पीढ़ियों से बिजनेस चला रहे हो, फिर भी आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है तो बंद ही कर दो ना, आप 3 पीढ़ी के बाद भी आप स्ट्रगल ही कर रहे हो, तो हाँ, तो उसके बाद तो नहीं करना चाहिए उसके बाद तो नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला यार क्या ये है, बहुत आई ओपनर बात है अपने लिए। बिल्कुल। और हमारे इंडस्ट्री में तो यू टू स्ट्रगल एवरी डे बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग विच हैज़ नो क्वालिटी कंट्रोल। यस। आप बिस्किट बना रहे होते हो, रॉ मटेरियल डालते हो, मशीन होती है, बिस्किट बन के साफ निकलती है। हाँ और यहाँ पे तो रॉ मटेरियल दिमाग है ना, हाँ तो हाँ, दिमाग का काम तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। करेक्ट बिकॉज यू आर कमिंग आउट विद सम फ्रस्ट्रेशन इन द मॉर्निंग, करेक्ट। you had a fight in the house, हाँ and when you come out, and I can't expect good creative out of from you. यस So there is a lot of elements which are involved. करेक्ट। So you have to be passionate, you have to be curious, you should love creativity, and you should keep learning. Very importantly, learning. Yes. ये बड़ी क्लीशेड बात होगी, पर आज के तारीख में भी जितने बिलीव मी ऑन एवरी संडे आई ट्राई टू अटेंड अ ऑनलाइन कोर्स सो दैट आई कैन लर्न द अदर पर्सपेक्टिव. आई मे बी Wow. नोइंग अबाउट दैट इंडस्ट्री और अबाउट दैट सब्जेक्ट, बट आई विल अगेन गो थ्रू दैट बिकॉज वो इंसान जो पढ़ा रहा है शायद उसका पर्सपेक्टिव अलग हो. करेक्ट करेक्ट। Right, and you interact with those people, you understand and learn. यस यस। सर आपने ना बहुत एक अच्छी चीज़ बोली कि क्रिएटिव आउटपुट है विच कैन बी सब्जेक्टिव ऑल्सो। मतलब आपने एक बहुत अच्छा कैंपेन डिज़ाइन किया, आप क्लाइंट के पास लेके, आपको लगता है या तो बैंग है, शॉर्ट है और क्लाइंट कर ही लेगा, मतलब ये तो क्लाइंट का मतलब वो रामबाण इलाज है, एंड क्लाइंट जस्ट शट्स यू डाउन एट द वेरी फर्स्ट थिंग। कभी ऐसा कुछ हुआ है सर, ऐसा कुछ किस्सा शेयर बहुत बार कीजिए। हुआ है, बट मैं आप सभी को ये बोलता हूँ, मतलब पूरे इंडस्ट्री को बोलता हूँ, डोंट गो रैंडमली टू प्रेजेंट टू द क्लाइंट. मुझे क्लाइंट को इम्प्रेस करना नहीं है. मुझे मेरा ब्रीफ क्या है, उस ब्रीफ के हिसाब से मेरा क्रिएटिव आउटपुट आया कि नहीं आया, दैट इज़ द क्वेश्चन. आप रैंडमली जाके किसी से पूछोगे, मैं हर समय बोलता हूँ एडवर्टाइजिंग द ओनली इंडस्ट्री द एंटायर वर्ल्ड नोज अबाउट इट, ऐसा लगता है. आप एक क्रिएटिव बनाओ, रास्ते में साइकिल वाले को बोले इसमें क्या करना चाहिए बता देगा आपको, बट आप कंप्यूटर खोल कर बताओ कि क्या करना है तो बोलेगा मैं कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हूँ. बट एडवर्टाइजिंग में सबके पास ओपिनियन है, हाँ राइट? उसको कैसे कंट्रोल करोगे आप? तो जो आपने आउटपुट बनाया है, इट इज़ बेस्ड ऑन सम ब्रीफ. सो फर्स्ट recap that brief, and according to the brief, if the output is working, then you are there. If the client is saying मुझे पसंद नहीं आया, take him back to the brief. ब्रीफ के हिसाब से, अगर ब्रीफ के हिसाब से नहीं तब आप गलत हो. यू कैन बी सब्जेक्टिव, राइट? सो यू हैव टू बी अकॉर्डिंग टू द ब्रीफ. सो ब्रीफ पहले बताओ ना. कई बार होता है कि कॉन्फ्रेंस रूम में हम बैठे होते हैं, सडनली द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से चलो सेल्स वाले को बुलाते हैं. सेल्स वाला आके बोलता है कि ये क्रिएटिव देखो आप कैसा लग रहा है. पहली बात तो अब जब आपने उसको बुलाया तो गलती तो उसको निकालनी है, हाँ क्योंकि आपने बुला लिया सेल्स वाले को, तो बोलेगा Correct, हाँ correct. अगर मैं इसको हाँ बोला तो मुझे बेचना पड़ेगा, हम्म, तो वो 50 गलतियाँ निकालेगा. बट नो बडी इज टेलिंग हिम द ब्रीफ. Before he judges, I make sure that the brief has been translated to him very well. ये अंडरस्टैंड क्या ब्रीफ था आपके यहाँ से, उस ब्रीफ के हिसाब से आउटपुट है. अगर आप चेंज करते हो तो ब्रीफ ही अलग है, तो हम नया क्रिएटिव बनाएंगे. लेकिन ये ब्रीफ के अंदर आपको ये है, आप मेरे को इनपुट्स दो कि मुझे मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये चाहिए, आई विल इवॉल्व. बट बिफोर रिजेक्टिंग, आप जब क्रिएटिव ले आते हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि ब्रीफ के हिसाब से कि नहीं. अदरवाइज यू विल कीप डूइंग इट बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस प्रोफेशन, इट्स वेरी साइंटिफिक. yes. इट्स जस्ट नॉट क्रिएटिव. आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों है उसमें, तो आप साइंस यूज़ करो ना आपका, कि कहाँ पे कर रहे हो, आपको क्या ब्रीफ दी थी, हाउ मेनी एजेंसी डू दैट. सर ये अच्छा ऐड, आर यू सेलिंग लाइक दिस, ये अच्छी ऐड है. अच्छी ऐड नहीं, मुझे कम्युनिकेशन जो चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव वो बन रही है कि नहीं बन रही. आपको रेड कलर पसंद है, मुझे नहीं है. आपको बचपन में किसी रेड कलर वाले शर्ट वाले ने मारा था, इसे रेड कलर से आप हेट करते हो, पर रेड कलर का कुछ मीनिंग हो सकता है ना आज की तारीख में. yes. तो हाउ कैन यू हेट दैट? इट इज अकॉर्डिंग टू द ब्रीफ. टेल मी, इफ आई चेंज रेड कलर, विल योर टर्नओवर इंक्रीज? If not, then and red color has a meaning to this, accept it. Then only the professionals come into picture. Na? Advertising is a professional job. Correct. It's just not making ads and hoardings. Put Yes. some lines and put some image and do it. No. यस सर, इंटरेस्टिंगली ना मैं बहुत सारे बच्चों से आजकल बात करता हूँ ना, उनको ऐसा लगता है सो जैसे फॉर एग्जांपल वी आर आल्सो हायरिंग फॉर सोशल मीडिया मैनेजर, तो जितीश इज देयर, निखिल इज देयर, तो जितीश इज अ वेरी सीनियर मोस्ट हायर. तो इसका ब्रीफ यही था कि यार तेरे को और मेरे को ना कम्युनिकेशन देखना है कि अपनी कंपनी का कम्युनिकेशन क्या जा रहा है. वी डिड अ लॉट ऑफ गाइस, तो बहुत सारे स्पेशली यंगस्टर्स, जेन जी, कॉलेज से पास आउट होके वो आके बोलते हैं हाँ मैं तो कर लूँगा, क्या करते हैं. सो आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद जितीश ऑल्सो, एंड
सो मुझे ये टूल चलाने आता है, मुझे कैनवा आता है, मुझे इंस्टाग्राम आता है, मुझे बोला भाई ये सब टूल है, मैं टूल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम्म, टूल तो तू भी सीख लेगा, मैं भी सीख लूंगा। उस टूल के पीछे जो स्टोरी है कि तुम्हें कम्युनिकेट क्या करना है उस टूल के थ्रू, एग्जैक्टली वो मैसेज क्या है. वो मैसेज क्या है। Yeah, and every newcomer should think while sleeping, why would some agency hire me? सर एग्जैक्टली मैं ना आज की तारीख में प्रॉब्लम में ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर्स को लगता है हमें कोई टूल चलाना आ गया तो हम हायर हो जाएंगे। Why should someone hire me? अगर मुझे ही आता है तो दूसरे को भी आता होगा. करेक्ट। और मुझे एटलीस्ट दूसरे से तो अच्छा आना चाहिए एडवर्टाइजिंग के लिए. Yes. अगर मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो मुझे ज़्यादा आनी चाहिए ना. अगर Yes. ही इज थिंकिंग एज द अदर गाय इज थिंकिंग सिंपल तो नहीं हो सकता उसका. करेक्ट। Always they should ask, and that will worry them. And when it worries them, they start thinking and evolving themselves to work better so that they get recruited. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर मैं इसलिए मैं हमेशा सब यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि यार कोई टूल चलाने आता है, जैसे तुमको फोटोशॉप आता है या फॉर दैट मैटर तुम्हें सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम चलाने आ गया, अच्छा तुम्हें रीच बढ़ाने आ गई, दैट इज ओके, आई अंडरस्टैंड, दैट इज गिवन, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी, बट डोंट जस्ट काउंट योर लॉरल्स ऑन दैट, Hmm? बिकॉज अगेन टेक्नोलॉजी इतना फास्ट चेंज हो रही है, कल कोई बॉट आके, कल कोई टूल आके तुमको चीज रिडंडेंट कर देगा, बट तुम्हें क्या चीज़ रिडंडेंट नहीं करेगी कि वो टूल या बॉट जो भी नया आया है मार्केट के उसको भी कैसे ऑपरेट करना है। चैट जीपीटी हर कोई चला सकता है, लेकिन चैट जीपीटी से क्वालिटेटिव वो जो क्वेश्चंस पूछने हैं राइट, जिसका तुमको राइट आंसर दे वो आना चाहिए तुमको। Yeah, yeah. सर ऐसा कुछ एग्जांपल बताइए ना। अच्छा एक और चीज़ मैंने ना एक सुना है, मेरा एक फ्रेंड था वो भी एडवर्टाइजिंग में था, वो बोलता था कि यार हम जब क्लाइंट के पास जाते हैं ना हमको पता है ये ब्रीफ अच्छा है जो हमने बनाया है, अगेन विद द ब्रीफ, लेकिन हमको पता है कि क्लाइंट को पहले ये नहीं दिखाना है, पहले उसको 2-3 ये दिखाओ जो रिजेक्ट करे, चौथा बोलो सर ये तो मास्ट है, अब आप ये देखो, ऐसा होता है। नहीं होता है बट these are not to be practiced. Is basically that you should know what you are communicating. Why did he hire you? He knows how to manufacture, how to price it. He hired you so that you know the communication better. Correct. So you come out with such an input which has no questions asked, right? मुझे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मुझे क्लाइंट को खुश करना ही नहीं है. मेरे पास रिसर्च बेस्ड आउटपुट हो और मैं लाके बोलूँ कि इट हैज़ बीन टेस्टेड अमंग सो मेनी पीपल एंड इट कैन वर्क, देन इट वर्क्स, बिकॉज यू आर बीन हायर्ड बिकॉज ही डजंट नो टू डू दैट, राइट? सो मैं उनके पोर्टफोलियो में नहीं घुस रहा हूँ, वो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं घुस रहे हैं, बट आपके पोर्टफोलियो में नहीं घुसने का कारण होना चाहिए. यू शुड बी एक्सपर्ट इन दैट ना. यू शुड नॉट कीप एनी गैप्स यार, विच यू कैन क्वेश्चन एवरी टाइम. हर बार कई बार ऐसा होता है ना, जब आप ऑफिस से निकलते हो क्लाइंट के तो 3 लोग होते हैं आपके साथ और आप बोलते हो यार क्लाइंट को कुछ समझ में नहीं आता है, क्लाइंट तो ऐसा बेवकूफ़ है, ऐसी बातें होती है, कोई कॉमन होती है, एलिवेटर टॉक्स होते हैं, ये होता है ना, उतरते हो. मैं उस समय अपनी टीम को ये बोलता था, माना क्लाइंट सबसे बेवकूफ़ है, उसको कुछ नहीं पता है, पर ज़िंदगी में उसने एक अच्छा काम किया, उसने हमें हायर किया. अगर आप अपना को इंटेलिजेंट समझते हो, उसने उस इंटेलिजेंट इंसान को हायर कर दिया तो वो तो इतना तो इंटेलिजेंट है. तो डोंट कंसिडर हिम एज स्टूपिड, because he may not know how to communicate, but he knows his business better than us. Yes. So you help them, collaborate with them, and then you do that. Correct. Right? So that is very, very important element to be considered. सर हमने बहुत सारी बातें की ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग, तो आपका इस फील्ड में आना कैसे हुआ, मतलब वर यू पहले से आपको क्यूरियोसिटी थी और हाउ डिड इट हैपन? I started my career with sales, and I was there for many years in sales, and then I entered into marketing. So while I was in marketing, I used to interact with advertising agencies. So many a times I used to give an input which is supposed to be given by the counterpart, basically from the agency. From the agency. And my agency friends only motivated me to enter this. And when I entered this industry, I gave my maximum span of life into advertising. The reason was that in sales, you are selling one particular product and you keep selling that product for the ages. In advertising, morning I am thinking about a household product. Afternoon I am selling about a resort. Evening I may be selling something else. So there's an excitement of various product category to learn and to communicate about it, to understand that product category. So that was the most exciting thing. Ki every time, every month, you might be working on various category of products, which makes you excited, gives you that thrill. You come to know about that category of product. And slowly, for more than 20-25 years, if you've been working on various category of product, you could imagine what type of learnings you would have gathered. So that was the most exciting things which used to happen. And in my earlier career in sales, people used to say, "Tu story bahut banata hai."
right? हाँ And my career, I was paid for making stories. हाँ हाँ So उससे अच्छा क्या हो सकता है? अभी आप ये स्टोरीज को पर्दे पे ला रहे ला रहे हो या कहीं पे ला रहे हो तो उसका पैसा मिलता है. So that was a good benefit कि earlier I used to be objective of making stories and here I have been asked to make stories. करेक्ट So करेक्ट that was the lovely part of that industry. And one thing is that कि if you start loving that industry or work, there is no looking back. करेक्ट पैसा will follow you. करेक्ट That's the truth. You will have no tiredness. अब रात को 12 बजे तक 1 बजे तक काम कराओ. अभी हमें ऐसा लगता है कि यार एक लाइफ इज लेस, 24 hours less. Wish they would have given more hours to us. इतना कुछ है करने को. करेक्ट It is so exciting. सर किसी कल्चर का कितना इम्पैक्ट है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पे? मतलब अगर मैं पूछूं कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इन द यूएस और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इन इंडिया और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इन जापान, हाउ आर दे इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकल कल्चर? It is always through the local ones because you're talking to that person who is into that culture. If you evolve and weave in that culture into it, it will be more effective. An ad which is working in America, not necessarily it will work in Ahmedabad. An ad working in Calcutta may not be necessarily that working in Ahmedabad. An ad working in Rajkot may not be working in Ahmedabad. Right? How do you connect? I'll give you a simple example. Many years back, we were working on Thumbs Up. It came out with a bottle of 5 rupees for the first time in the country. So when we wanted to do it in English, taste the thunder in just rupees 5. When we were launching it in Ahmedabad, taste the thunder, अब तूफानी ठंडक रुपए 5 में समझ में आ गया. But when we went to Rajkot में there was a Sosio, which is again sold in 5 rupees. And that is you can say, is a ritual of their life कि खाना खाने के बाद Sosio जरूर पिएंगे. Suddenly some brand like Thumbs Up comes and says कि आप रुपए 5 में ले लो. It looks like a foreigner. So one of my copywriter wrote a very nice line, having a cultural connect. He said, बापू गजब थे, अबे रुपया 5 में Thumbs Up. बापू गजब थी is a slang which is used there. Everybody talks in that language. So that is a cultural connect there. Yes. बापू गजब थे, अबे रुपया 5 में, अबे Thumbs Up रुपया 5 में. So that connect will work ना, because that person will think कि यार मेरे बारे में बोल रहा है, मेरे जैसी बात कर रहा है, तो कल्चर तो इफेक्ट करेगा ही ना. राइट. अब दुबई में आप जाओ या सॉरी इन एनी अरेबियन कंट्रीज इफ यू गो देयर, और मैं बताता हूँ कि ये गंदे कपड़े हैं, ये साबुन यूज़ करोगे तो सफ़ेद हो जाएंगे, वहाँ पे उल्टा पड़ा जाएगा ना. हाँ. सफ़ेद कपड़े गंदे हो जाएंगे. हाँ. Right, with their cultural way of doing it. Yes. So you have to make sure you have to understand the cultural nuances and then communicate. Without that, it will backfire. Otherwise, it will backfire. So इसलिए there are a lot of examples which are done in that way, where you have to make sure you are not made use of that cultural nuances. You fail. जितना close जाओगे ना आप उसके, उतना समझ में आएगा आपको. Correct. Right. So वो हमारे यहाँ पे 18 साल तक बच्चा घर पे ही रहता है ना, 20-25 साल तक घर पे ही रहता है. यूएस में नहीं रहता है. हाँ. उसके कल्चरल अपब्रिंगिंग अलग होती है, तो उसको कम्युनिकेशन वैसे करना पड़ेगा. समझ रहे हैं आप? करेक्ट. तो वो कहाँ होगा. हम आज इंडियन फैमिली में कोई भी बच्चा घर के बाहर रहता होगा हॉस्टल में, आई कैन बेट दैट एवरी डे उसके घर से फोन आता खाना खाया. करेक्ट. हाँ, दिन में 4 बार आते हैं. तो वो दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. डू दैट मेनी अ टाइम्स. दैट आर द इनसाइट्स. हाँ, इसलिए शायद हमारे यहाँ पे जैसे बहुत सारे ब्रांड और इमोशनल कनेक्ट के लिए माँ के हाथ का खाना, घर का खाना, इस पे प्ले अराउंड करते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें तो कॉमन होती है, वो कलकत्ता में हो या अहमदाबाद में हो, माँ का फोन करके पूछना इज कॉमन. सो दे यूज दैट व्हेन दे आर यूजिंग इट. जहाँ पे कल्चरल यूज करना पड़ेगा कल्चरल यूज करेंगे, जहाँ पे जो कॉमन है वो हो गई वो कॉमन. करेक्ट. सो अगेन हैविंग सेड दिस, आई एम अगेन reiterating it that you have to understand the consumer well. For that you have to move. For that you have to go out of the conference room. For that you have to come out from the AC rooms and go and meet those guys. So if you want to meet them, you go and visit them, talk to them, find out. रिटेल आउटलेट में जाके खड़े हो गया, हाउस वाइफ क्यों खरीदती है, क्यों खरीद रही है, क्या खरीद रही है, उसको देख के क्या अट्रैक्ट हो रहा है. सो वो देखने के बाद ही आप कम्युनिकेशन कर पाओगे ना. सो उसके लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए. करेक्ट. अगर इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन इट इज़ नॉट द फील्ड फॉर यू. सर आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि कंज्यूमर को पहचानो. मैंने अपने MBA के लिए एक प्रोजेक्ट करा था. सो अगेन ये मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है. तो मैंने उठाया था, छोटा था, कि जो ये वस्त्रापुर अहमदाबाद में लेक जो है, यहाँ पे सब ठेले खड़े रहते हैं फास्ट फूड के. तो मैं ऐसे स्टडी करा था कि उन लोगों ने वही लोकेशन क्यों चूज़ की है. सो मैं जाके बात करता था, सो मुझे ना गलत जवाब देते थे ठेले वाले, और मुझे समझ नहीं आया, और मुझे पता चला कि गलत जवाब दे रहा है. जैसे मैं पूछता था कि आप यहाँ पे कितने बजे से कितने बजे खड़े हो, आपका अप्रॉक्सीमेट अर्निंग कितना. चलो अर्निंग में समझ सकता हूँ कि उसके लिए सेंसिटिव इशू है, बट मैं ना एक दिन गया, हमने 2-3 घंटे हम घूमे, तो वो ना हमको जो हमको आंसर्स मिलने चाहिए थे नहीं मिल रहे थे. एंड देवर शाइंग अवे. सबने कुछ तो मना कर दिया.
देन एक बंदे ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो मैंने बोला हम तो निर्मा यूनिवर्सिटी से हैं, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कॉलेज में एमबीए की सबमिशन के लिए। देन वो थोड़ा खुला, बट फिर उसने मुझे हमने उससे पूछा कि यार आपने इतना अच्छा बताया और आपने बाकी लोगों ने हमको बताया नहीं। तो उसने ही हमको बताया कि यार हमको लगा कि आप वो एएमसी से आए हो, अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी से, आप हमें ठेले उठवा ना लो हमारे। हाँ बिल्कुल। हाउ मच यू नो, सी आई गो टू रेस्टोरेंट्स हाँ, एंड यू नो ऑल मेजॉरिटी रेस्टोरेंट जो जो बंदा सर्व करने आता हो ना, वो पर्टिकुलर राजस्थान से होता है, हाँ, राइट। यू कैन उसके पहनावे से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ का है। कहाँ का है? जब वो आता है, और मैं भी राजस्थान से हूँ, हाँ, मैं अगर उसको लैंग्वेज बोलता हूँ ना, कटार हो आप, हुँ, कहाँ से हो आप, हुँ, और वो बोलता है मैं वहाँ से हूँ, और मैं उसको बोलता हूँ मैं वहाँ से हूँ, हुँ, आप सर्विंग में देखो डिफरेंस, करेक्ट, करेक्ट, right? करेक्ट, He will love talking to you, me talking to you, because he is also out of his place. So you're correcting him culturally कल्चर, with the language, यस, with the same place. होता है ना? तो करेक्ट, वो होता है ना, तो वो एडवर्टाइज में भी होता है ना। करेक्ट, जब आप उसकी बात कर रहे हो, आप उसको इतना अच्छे से समझते हो, यस, तो आपका काम होगा, आपका कम्युनिकेशन बैंग ऑन पहुंचेगा। ऑन। बट उसके लिए अगेन उसको जानना बहुत जरूरी सर तो ये भी एक कला है कि आपके कंज्यूमर से क्या इनसाइट निकालना, ये भी एक कला है। है? 100%। आप किस तरह से क्वेश्चन पूछते हो, नहीं तो गूगल फॉर्म भर रहे होता ना आपने, तो हाँ, 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 हाँ। मतलब मैं गूगल फॉर्म के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे सर गूगल ये फॉर्म हमारे ना आंसर कॉलेजेस में बहुत कॉमन है, जब हाँ प्रोजेक्ट की डेडलाइन होती है रात को हॉस्टल में फॉर्म्स हाँ भर भर देने देते हैं, चाहिए। यार तू भर दे यार जो तेरे को सही लगता है। Many a times people don't say the age properly, हाँ, हाँ, तो इसलिए आजकल ब्रैकेट होता है 30 to 40 years, 30 to 40 इयर्स। हाँ, मीन्स may not answer the age properly। हाँ, मंथली इनकम, हाई इनकम वाला लो बोलेगा, लो इनकम वाला हाई हाँ, बोलेगा, हाँ, तो हाँ, कहाँ से डिराइव करोगे, करेक्ट, करेक्ट। है ना? तो वो नहीं हो पाता है। सर बहुत बार हम इलेक्शंस में देखते हैं वोटर वोट डाल के आता है, लेकिन वो ओपिनियन पोल वाले को दूसरा बताता है। हम्म। उसको लगता है पता नहीं ये किसी पार्टी के गुंडे मुझे मारना दे अगर मैं उनकी पार्टी का नाम ना लूँ है, तो। मेरे क्लाइंट बहुत अच्छा बोलते थे मुझे कि क्लाइंट ऑलवेज सरप्राइजेस यू, हाँ, यू कैन नॉट हैव ए प्री स्टेटमेंट सेट इन माइंड, दे विल ऑलवेज सरप्राइज यू। एक ही रूम में, आप पहले वो होता ना, क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक्स होते थे, याद है ना हाँ, आपको? यस, यस, यस। तो एक ही एज के लोग इस तरह का सोचते हैं, नो, एक ही ऑफिस, एक ही कॉलेज में 22 साल का बच्चा सास भी कभी बहू देखता होगा, और उसी क्लास में दूसरा बच्चा एमटीवी देखता होगा। यस, तो अभी आप माइंडसेट की बात करते हो, आप डेमोग्राफी की बात नहीं करते हो। इस तरह के माइंडसेट के लिए क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए, उस तरह की यस, बातें करते हो आप। यस, सो यस, यू आर इवॉल्व यस, कंप्लीटली। यस, यस। सर ये बहुत अच्छा आपने बात बताई कि मैं अभी देखता हूँ, स्पेशली जैसे आई आई सीन दिस मेरे फैमिलीज में, रिलेटिव्स में, जो 18 से 25 साल के बच्चे हैं जो घरों पे रहे हुए हैं, प्रॉबेबली आज भी वो लोग तारक मेहता देखते होंगे या फ्री टाइम में भी मोबाइल में तारक मेहता देख लेंगे। बट जो बच्चे बाहर गए हैं, हॉस्टल्स में गए उनका हैं, अलग है। वो टीवी देखते ही नहीं है। वो दे वुड बी मोर ऑन नेटफ्लिक्स, उनको लेटेस्ट कौन सी वेब सीरीज आई है पता होगा। तो आप दोनों एक ही एज एक ब्रैकेट ही के एज हैं। ब्रांड किया, तो आपको उनको समझना पड़ेगा ना, आप किससे बात कर रहे हो। यस, 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 कि यस। मैं ऐसा सोचता हूँ इसलिए वो लोग ऐसा सोचते होंगे, नहीं, यू मे that's बी right. हाईली मिस्टेकन। यस, यस, करेक्ट। सर एक ऐसा ऐसा कोई कैंपेन आपका या कोई जेनरिक कैंपेन जिसको आपको लगा हो कि यार इस बंदे ने कम्युनिकेशन प्रॉपर कैप्चर किया है, या कोई आपका भी एग्जांपल हो जहाँ पे आपको लगा कि यार कम्युनिकेशन उसने बिल्कुल प्रॉपर कैप्चर करी अपने साथ, इंटरनली अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और बाहर अपने कस्टमर्स के साथ। मैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे फील होता है कि अगर एज अ ब्रांड ओनर, मतलब एज अ कंपनी ओनर, आई एम ऑल्सो ब्रांड ओनर माई सेल्फ, जब तक मेरे एम्प्लॉयज़ को ही पता नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ, वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे, वो मेरे कस्टमर को वैल्यू नहीं दे पाएंगे। आप बता जितिन, सकते ये हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं कौन सा कैंपेन अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा सच है, उस बारे में नहीं जाऊँगा मैं, बिकॉज हर कैंपेन जब किया है तो दिल से किया है, ठीक है। एक चीज़ जो शायद हमने ज़िंदगी में पाई है एडवर्टाइजिंग के अंदर, कि क्लाइंट का रिलेशनशिप हमारे साथ 10 साल 15 साल रहा है। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ होता और उनके साथ करेक्ट, हमने पार्टनर की तरह काम नहीं किया होता, तो 15 साल 10 साल तक एग्जिस्ट उनके एज ए कम्युनिकेशन पार्टनर नहीं किए होते। आजकल के अंदर मैंने देखा एजेंसी के अंदर नंबर ऑफ क्लाइंट्स है कि 20 क्लाइंट है, पर वो हर 3 महीने में चेंज होते रहे, 20 तो 20 ही रहते हैं, लेकिन वो अलग अलग क्लाइंट आते हैं। तो रिलेशनशिप इज नॉट मेंटेन, यू आर नॉट ग्रोन टुगेदर, वी विद द क्लाइंट हैज़ ग्रोन टुगेदर। एंड आई वोंट से दैट ये बहुत अच्छा कैंपेन है। मैं हर समय ये बोलता हूँ कि अब इमेज जो बना रहे हो आप, जो ब्रांड बना रहे हो, वो सिर्फ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से नहीं होता है, आपके इंटरनल कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनली क्या कर रहे हो, मैं ये बोर्ड में तो ये लिख दूँ ऐड में कि ट्रस्टेड सिंस 1930, बट व्हेन आई इंटरेक्ट विथ यू डोंट गिव मी द चेक ऑन टाइम, you give me after 2 months 3 months after 10 rounds, how do I trust you? So that is the advertising line which you are saying. It should be like करेक्ट। Tata now. When I'm यस, saying यस, 100 days of trust, then I should trust you for everything whenever you do it without asking or giving me. When you're committed
You have signed an agreement. When the work is done, why are you making me wait for the payment? Right? So I've seen a good brand has also practiced whatever you say outside, inside also. I have a lot of clients like that, and I have got one of the largest jewelry mall here. And I used to always surprise कि इतना ट्रैफिक कैसे आता है, ऐसा ट्रैफिक कैसे आता है, क्यों इतने लोग आते हैं, 3 जनरेशन से काम कर रहा है. बिकॉज दे मेंटेन दैट, दे मेक श्योर दैट द कस्टमर गोज आउट ऑफ हेयर शुड नॉट बी अनसेटिस्फाइड. राइट. वो जब भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आई एम गिविंग देम सोल्यूशन एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग ए ज्वेलरी. इट इज़ नॉट अ ट्रांजेक्शन, देयर इज एन इमोशनल ट्रांजेक्शन. आई हैव सीन इन द शोरूम, जो जो ओनर्स है, मैं बैठा हूँ उनके साथ, देयर इज़ अ यंग कपल हु कम्स, उनका टच कर रहे हैं फीट और जा रहे हैं. तो मेरा ऑब्वियस क्वेश्चन होगा, आपके रिलेटिव है क्या? बोलते नहीं, इसके ग्रैंडफादर मुझसे खरीदते थे, इसके फादर खरीदते हैं, अब इनकी शादी हो रही है तो आशीर्वाद लेके खरीदना चाहते हैं. कैन यू थिंक अबाउट एन relationship like that? I'll give an example. I'll give a small example because time के constraint के. मैं आपको एक example देता हूँ. The other day I was sitting, some lady came to sell her सोने का बिस्किट because she was in need of money, तो she wanted to buy. तो जो प्राइस था आज का, वो प्राइस देने के बाद उन्होंने बोला ठीक है आपका हो जाएगा, डोंट वरी. उन्होंने बिलिंग काउंटर में फ़ोन किया कि आप वहाँ जाइए, आपको अमाउंट मिल जाएगा. तो जब वो गई, इतने में देयर इज़ अ पर्सन हु एंटर्ड द रूम ऑफ द ओनर. तो उन्होंने देखा कि प्राइस जो है ना, उसके अंदर डिफरेंस है 5,000 रुपये का. ही स्टॉप माई कन्वर्सेशन, ही वेंट देयर टू द बिलिंग काउंटर एंड सेड इनको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने का, प्राइस अभी चेंज हुआ है, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देना. उनको नहीं पता था, कस्टमर तो खुश था 5,000 कम लेके, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएट हुआ. तो ही थॉट इट इज़ हिज ड्यूटी टू टेल. आई सेड आप नहीं भी बोलते चलता ना. बोलता नहीं, मैं 5,000 रुपये लेके जाऊँगा कहाँ. अब आप सोचो 5,000 रुपये जब एक्स्ट्रा दिया उसको, वो कहीं और जाएगी कभी, किसी ज़िंदगी में कभी करेंगे नहीं जाएगी ना. ऐसे n number of, I can write a book on them, ऐसे experiences, because that is what is making an image in the brand. That is the reason they could have that sustained 76 years of existence in this town. I'm not advertising for them, but I am sharing some experience which they have. They are practicing that. They make sure not only for customers, for the employees. You know, the employees come from 11 to 7, but they believe that the employee is coming from 9:30 to 8:30, because when they start from their home, they're working for me, they're coming for me. Correct. So that वो 1 घंटा जब बस चेंज करके आती है लेडी, तो बस चेंज करके मेरे लिए आ रही है ना. So there is not tangible transaction happening. This is emotional. Yes. 250 लोगों का स्टाफ है सर. आप समझो, आप उनको मेंटेन करना, उनको करना मोटिवेट, बिकॉज फॉर देम कस्टमर्स कम सेकेंड. फर्स्ट इज माई एम्प्लॉय. इफ दे आर हैप्पी, दे कैन मेक ए हैप्पी कस्टमर. सुपर राइट. सो वो आप एडवर्टाइजिंग तो कर दो, जैसा दुनिया का सबसे अच्छा डिज़ाइन वाला मैं बना रहा हूँ, बट खरीदते समय मेरे को एक्सपीरियंस नहीं आता है. ज्वेलरी जब आप खरीदते हो ना सर, जितने आप 30,000 की ज्वेलरी खरीदते हो, 30 लाख की, आपको फीलिंग वही होती है कि 30,000 आपसे सबसे बड़ा बायर आप ही हो. तो आई कैनॉट से ना 30,000 रुपये का आप खरीद रहे हो तो मैं आपको इस तरह से बिहेव करूँगा, 30 लाख का तो मैं स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा. नो, अ पर्सन हु कम्स फॉर 30,000 शुड बी ऑल्सो ट्रीटेड इन द सेम मैनर एज अ पर्सन ऑफ 30 lakhs. दैट मेक्स ए ब्रांड. करेक्ट. दैट मेक्स ए परसेप्शन. दैट मेक्स ए रेपुटेशन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ब्रांड्स हु वर्क. है ना. मैं बोलूँ, मैं दुनिया में सबसे, आप मेरे को विजिटिंग कार्ड दें और बोलेंगे सर मैं HR में, ह्यूमन रिसोर्स में बहुत अच्छा हूँ, और आप कार्ड देके जाते हैं, मैं आपको डायल करता हूँ आपके ऑफिस में, और आपके ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट मुझसे बात करती है, क्यों काम हो, तो क्या काम था, क्यों बोल रहे हो आप, क्यों फ़ोन करो, वो तो अभी नहीं है. तो एम आई इन द सेफ हैंड्स व्हेन आई टॉक टू यू? नो, आई एम नॉट. तो योर इंटरनल सिस्टम्स हैज टू बी सो नाइसली डन दैट इट प्रोजेक्ट्स. वो एक कैंपेन था सर कई सालों पहले, किसी एक बैंक ने बोला था, हम हैं ना, हम हैं. ठीक है, हम बहुत खुश हुए, बहुत खर्चा किया, सम सेलिब्रिटी को लाया आप और बोला हम हैं ना. तो आपको लगा यार ये बैंक तो है, दे आर देयर टू टेक केयर ऑफ मी, हम है ना, मैं पैसा लगाऊँ तो इस बैंक में लगाता हूँ. बट आप जब बैंक में जाते हो तो आप डील किससे करते हो? कैशियर से. जब आप उससे बात करते हो, उससे आप सेलिब्रिटी से नहीं कर रहे हो, ब्रांच मैनेजर से नहीं कर रहे हो. जब आप टेलर से करते हो, उसको आपको लगता है हम हैं ना. यस, हम ना. राइट. सो मैंने इंटरलाइज नहीं किया उस कम्युनिकेशन. करेक्ट. मैंने एडवर्टाइजमेंट खर्चा कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं किसी को कुछ प्रॉमिस कर रहा हूँ. अ ब्रांड इज अ प्रॉमिस, एंड अ गुड ब्रांड इज प्रॉमिस केप्ट. Right? So when you are making an image, you're promising someone that I'll do this or I am for that. So when I come with that expectation, if you don't do that, I fail. It will backfire. उससे तो अच्छा नहीं किया होता आपने. Correct. मेरी आशा ही नहीं बढ़ती आपसे. Correct. मैं आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करता कुछ. अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यू आर ट्रस्टवर्दी. आप मेरे को ट्रस्टवर्दी, आप ही बोल रहे हो, मैं ना, मैं आता हूँ आपके पास, आप डील करते हो. मेरे दिमाग में नहीं आता ना अगर आप नहीं बोलते. आपने बोल दिया लेकिन आपने उसको अंदर इंटरलाइज नहीं किया. So I say every brand, every owner, every entrepreneur, it is just not advertising saying good things about you.
It is also to be believing that good thing into the internal process. Every point of contact of a consumer with the brand has to make sure that whatever you promising has been adhered to. Also, I think, and you have enlightened me of a sort कि a good brand is a promise, or a brand is a promise, but a good brand is a promise kept. तो मुझे ये नहीं, बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब अमेजोन अपने शुरुआत के दिनों में जस्ट स्टार्टअप ही था, सो दे हैड अ टाई अप विद अमेरिकन पोस्टल सिस्टम कुरियर करने के लिए. सो अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता था, उनको कॉल आता था कि हमको प्रोडक्ट रिटर्न करना है, तो उस बंदे को रिटर्न के लिए, क्योंकि खुद का लॉजिस्टिक नहीं था, वो पोस्टल स्टैम्प्स भेजते थे कि ताकि तेरा खर्चा नहीं हो, जो ये पोस्टल स्टैम्प करने का वो हम तेरे को वो भी भेज रहे हैं. हाँ, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन कि कस्टमर फर्स्ट ब्रांड है. 100% यार, ये आपको भूलना नहीं चाहिए. एडवर्टाइजिंग में यही तो है. एडवर्टाइजिंग हम यही बताते हैं उनको कि सर ये जो प्रॉमिस करो, विल यू बी एबल टू कीप इट. द मैसेज शुड बी सच दैट यू आर बिलीविंग इन इट एंड यू आर एबल टू परफॉर्म दैट. इफ यू आर नॉट, it will backfire. Correct. There the intelligence comes. Correct. There the experience comes. Yes. Right? Otherwise, it's just making ads and putting on social media. सर इंटेलिजेंस, कमिंग टू इंटेलिजेंस, अभी जमाना एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है. हाउ डू यू फील एआई इज चेंजिंग द इंडस्ट्री, स्पेशली इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, एंड डू यू सी दैट कि इससे अच्छे ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट, अच्छे कम्युनिकेटर्स, उनको मदद मिल रही है कि या दे आर गेटिंग ओवरशैडोड बाय टेक्नोलॉजी? See, ये बहुत कॉमन एंड क्लीशेड क्वेश्चन है आजकल कि एआई क्या करेगा. यस. And pertaining to advertising and branding, I always believe that it's a tool like Photoshop. आपने बोला ना फोटोशॉप और एआई, क्या बोलते हैं वो, Adobe Illustrator जो करते हैं, उस तरह से एआई है. एआई performs on your behalf based on your brief, which is called prompt. But you should know what prompt has to be given. I always say it is the use of brain. Brain का spelling होता है BRAIN. So AI and brain both works together. Correct. So brain, और ये जो AI की बात कर रहे हैं ना आप, ये AI अच्छी चीज़ है. It shortens your time. It gives you an opportunity to change it frequently. या बहुत कम टाइम पे आप चेंज कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो टूल के यूज. बट अल्टीमेटली you have to use it. If you're not using your brain and your mind, then you're gone. Interestingly, I can tell you there are certain things which AI can't do. अच्छा, हाँ, right? Please, sir. Yeah, AI can't do. Is that it cannot challenge your brief. आप जो ब्रीफ दे वही करेगा. वो ये नहीं बोलेगा आप गलत ब्रीफ दे रहे हो, आपको नहीं पता ये क्या होता है. Correct. आपने ऐसा एंगल क्यों सोचा है? वो तो वही करेगा जो आपने ब्रीफ दिया है. Yes. जो प्रॉम्प्ट दी है. He will not say that sugar free can be used by non-diabetic people also. Yes. Yes. It will not ask you why should all pain relieving balm has to be black. It can be white also. Correct. It will never do that. Yes. Right? It will create black के ऊपर कैसे कर सकते हो? Correct. That's one thing you should not forget. It will never challenge a brief. सर ये white balm की स्टोरी भी मैंने पढ़ी है. Yeah. Move, when we launched Yes. Move, Iodex was 100 years old brand with black, which had patches. Yes. So somebody came and thought about it. नहीं यार ये black ही क्यों होना चाहिए? White क्यों नहीं हो सकता है? वो AI नहीं सोचेगी ना? Correct. 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 AI नहीं सोचेगी, वो pre-fitted है. वो human mind सोचेगा. Yes. Human mind can do wonders. Yes. It can come out with innovation. Pre-fitted नहीं होगा, ठीक है? दूसरा, it cannot have empathy, emotions. Right? It will never say that. So it will never do that. So you should not forget about the empathy and the emotion which you can have, which can never be done through any prompt. मेरा और आपका relationship जो affection का है, it cannot reflect that. Yes. Right? वो माँ का बेटे के साथ जो है बहुत मुश्किल होता है. So वो emotion capture करना अभी तक तो इतने strongly नहीं हुआ है. बात का पता नहीं मुझे क्या होगा, but it should not be tangible. I'll give you an example of this same jewelry shop which I always say कि AI can't do this. There was a middle class family who came and they wanted to return back the jewelry set to the owner. तो एक typical AI driven system क्या बोलेगा कि आज का रेट क्या है? आज का रेट सर कम है, मजदूरी कितनी है, काट दो, आज का रेट करके उनको पैसे दे दो अगर मेरा मन किया तो. या तो नहीं देगा कि आप तो नहीं लेते. चलो आप बहुत अच्छा कस्टमर ओरिएंटेड पर्सन हो, तो आपने क्या किया, आपने उनको बोला ठीक है ये काट के दे दूँगा. तो जब वो आया ना तो पूछा कि आपको क्या हो गया, वाई आर यू सेलिंग इट? बोलता बच्चे की सगाई टूट गई, लड़की की सगाई टूट गई. नाउ इट वाज ए बैड सिचुएशन, राइट? बट वो उन्होंने बोला कि अच्छा आपकी सगाई टूट, बैठिए आपको कैसे चाहिए, आपको ट्रांसफ़र कर दें कि आपको चेक दें? कि सर आप चेक दे दो तो अच्छा. तो बोला आप बैठिए, चेक के लिए ऑर्डर करते पूरे पैसे का, नो मनी डिडक्टेड. नाउ सी यू आर बिल्डिंग ऑन द ब्रांड अननोइंगली. सो आपने पूरा पैसा दिया उनको कि आपको 12 लाख का लिया था आपने, मैं आपको 12 लाख वापस दे देता हूँ,
सर इसमें कटेगा नहीं, बोले नहीं, आप लिखा है योर फैमिली इज नॉट इन टू गुड शेप नाउ, यू बाय दिस, नाउ यू आर इन्वेस्टेड, बात वहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए. बट ही वेंट अ स्टेप फर्दर. You know what he said? He said, I'm not going to sell this jewelry for another 2 years because when she get engaged again, she can take it from her. It's in my custody. Don't worry, it's उसका खुद का Wow. प्रोडक्ट है. Because उसने 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगाए हैं इमोशनली चूज करने में ज्वेलरी. उसके सपने थे, उसमें इमोशन था ना, खरीद रहा था. वो सपने वापस उसको रिट्रेट करना पड़ा, सब कुछ वो वापस करना पड़ेगा, उसको दुख होगा. तो उसको बोला उसका जो चॉइस है, इट इज सेफ विथ मी, इट विल नॉट बी सोल्ड. Wow. राइट? कैन AI डू दिस? No. हो ना. बट ही इज बिल्ट अप, तभी 2,500 का ट्रैफिक आता है ना. और ये नोइंगली नहीं होता है, ये उनके बिलीफ है. दे आर डूइंग इट अननोइंगली. मैं उनको पूछा सर आपने क्या किया, पता है? बोला अच्छा मैंने ऐसा किया, पता ही नहीं मुझे. But then I think the value system of the person speaks. वैल्यूज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन स्पीक्स अबाउट इट. Yes. सो तब दिखता है ना कि सर मैं कितनी भी एडवर्टाइजिंग कर लूँ, मेरे को जो अफेक्शन यहाँ मिलता है वो मिलता है यार. सो दैट AI कांट डू. सर ऐसे देखा जाए उनको तो एक 24 लाख का लॉट्स हुआ, मतलब 12 लाख तो उनको दिए, प्लस वो 2 साल Inventory- बेच नहीं रहे तो 12 लाख की इन्वेंट्री ब्लॉक हो गई. है, पर वो कैपेसिटी होनी चाहिए ना सर. Yes. उस कैपेसिटी के लिए ट्रैफिक आएगा ना. हाँ. ट्रैफिक आएगा तो उसको सर्विस कर पाओगे. सो Correct. इट्स ऑल लूप्ड इन. Looped in. तो उतना रिस्क लेने वाला होना चाहिए ना. तो वो कैसे होगा आपका? Correct. Right. So I'll give you another example which is very interesting. One of my real estate customers was very reputed in the market. It was a Corona time, and he had a township of 750 flats, Okay. and we sold 500, and we through huge advertising and all that. उस bad time पे हम लोगों ने बेच दी. So there was a get together where the owner and the builder called me. Builder मतलब real estate developer called us, and we had a party. And he has an habit of not taking the credit of anything. He used to say कि इनके कारण हुआ, उनके वाइफ्स को कि भाई आपने इतना टाइम दिया, संडेज को भी लोग आके यहाँ खड़े रहते थे, एंड वी वर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ ऑल. फाइन, वी फिनिश द पार्टी. आई वाज गोइंग आउट, ही कॉल्ड मी अप कि बाकी के 250 बाकी हैं, तो अपने इसके लिए कैंपेन बना के लाइएगा. हम लोग मिलते हैं 15 दिन के बाद, एंड लेट अस ट्राई टू एग्जॉस्ट दिस इन्वेंटरी विच इज लेफ्ट आउट. तो ऐसे ठीक है. एक टिपिकल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग वाला क्या करेगा, जाएगा अलग अलग कैंपेन तो सोचेगा. लेकिन एक कैंपेन तो ऐसा होगा ना कि अहमदाबाद के मोस्ट सक्सेसफुल ટાઉનશીપ में यू शुड बी पार्ट ऑफ इट. वो कहते हैं ना એટલા ઘરનો બસાયો છે, Yes. હવે તમે એના પાર્ટ બની જાઓ. तो लोग तो चाहेंगे जहाँ पे पहले से पॉपुलेशन आ चुकी है वहाँ पे जाने के लिए. तो आई मेड दैट कैंपेन एंड वी मतलब द टीम मेड दैट कैंपेन एंड वी आर प्रेजेंटिंग इट एंड वी प्रेजेंटेड कि यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट मोस्ट सक्सेसफुल. ही केप्ट क्वाइट. ऑल द ऑफिशियल्स सिटिंग देयर, ऑल द सीनियर पीपल, ही केप्ट क्वाइट. आई सेड व्हाई, इसमें क्या है सर? बोलता संजय भाई अगर मुझे मार्केटिंग के आपको नंबर देने हैं तो मैं आपको 100 में से 100 दूंगा, 10 of 10, बट ये मेरे उसूलों के अगेंस्ट में, आई विल नॉट बाय दिस. आई सेड व्हाई, आई गॉट अमेज्ड. ठीक ऐसा क्या गड़बड़ है इसमें, लेट मी लर्न. ऐसे सर इसमें ऐसा क्या है? बोलता संजय भाई आपको पता है मेरे बाजू वाला जो रियल एस्टेट डेवलपर है उसके 10 फ्लैट नहीं बिके. इट इज़ लाइक हैविंग इन 5 स्टार अ फूड वेर ही डजंट हैव फूड. आई कैन नॉट डू दैट. आई लिव विद द कम्युनिटी ऑफ पिस्से. तो मैं 500 करके ऐसा बात कर रहा हूँ जैसे मैं तो 5 स्टार में खा रहा हूँ बॉस, तुम्हारे पास खाने को नहीं है. और वो मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपनी लाइफ में भी. इफ़ समबडी हैज़ इन्वाइटेड मी फॉर डिनर एंड हु कांट अफोर्ड लाइक मी, आई टेल माई फैमिली मेम्बर्स नॉट टू ऑर्डर, लेट हिम ऑर्डर. जो भी ऑर्डर दे, क्योंकि आप तो ऑर्डर काजू खोया, बड़ी बड़ी पनीर पकौड़ा ये सब करोगे, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा. इट्स बेटर दैट उसको ऑर्डर करने दो, अगले दिन मैं आपको ले जाऊँगा. डोंट ह्यूमिलेट हिम. सो व्हेन आई एम इनटू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और मैं ऐसा टॉम टॉम बोलता हूँ कि मैंने करा, आई एम ह्यूमिलेटिंग द अदर पर्सन, आई एम मेकिंग फील बैड अबाउट इट, आई एम ह्यूमिलेटिंग, डोंट डू दैट. वो बड़ा ब्रांड तब है सर, वो इमेज है उसकी. आई विल डाई फॉर हिम वर्किंग ऑन लेसर अमाउंट देन वर्किंग ऑन बिगर अमाउंट. दैट इज द इमेज, दैट इज द परसेप्शन, दैट इज द रेपुटेशन ही हैज. दैट्स व्हाई 500 बिका ना सर. मैं उनको एग्जांपल देता रहा कि सर हमने खर्चा किया, बोलो किया, मेरे कैपेसिटी थी, उसकी नहीं है, बट यू कैन नॉट ह्यूमिलेट हिम, ही इज माय नेबर. तो वो एआई सोचेगी नहीं सर. सर ये वैल्यू सिस्टम तो लाना ही बहुत मुश्किल बहुत है. मुश्किल है. और आई थिंक आज है ना, मतलब मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए एक एनलाइटनमेंट है कि वो वैल्यू सिस्टम बिल्ड्स योर रेपुटेशन, बिल्ड्स योर ब्रांड. Exactly. It's all interrelated with each other. That's why you'd love to buy from a particular shop and not from the other shop, because of the value system, because of the brand perception. And brand is not an artificial thing कि आपने बोल दिया ad में, सर ये ad में बहुत अच्छा, it becomes an advertising line, but it doesn't become your reputation, it doesn't become your image. So you have to work for that. Understand that. You have to get involved into client. क्या सर 25 पोस्ट बना के बना लोगे?
20 पोस्ट सोशल मीडिया में डालो, हो जाएगा? नो, यू गेट इन्वॉल्व इन, अंडरस्टैंड व्हाट प्रैक्टिस इट डज, पिक आउट दोज थिंग्स, अंडरस्टैंड दैट एंड देन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग अबाउट इट. सर ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है आपने, बिकॉज है ना आज बहुत सारे यंगस्टर्स जो आते हैं इंटरव्यू के लिए, सर इतने पोस्ट डाल देंगे, उतने पोस्ट डाल देंगे, वो सोशल मीडिया बम्बार्ड कर देंगे, और मैं हमेशा यही बोलता हूँ लेकिन क्यों करना है? हाँ, एग्जैक्टली जो आपने अभी बोला ना कि गेट बिहाइंड इट, कि क्यों करना है, क्यों कर रहे हैं, मैसेज क्या है आपका सर? मैसेज किया. तो अगर वही आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी वैल्यूज आप उसको कम्युनिकेट, कई बार क्लाइंट को ये नहीं पता होता कि क्या कम्युनिकेट कर सकता हूँ मैं, उसका मंडेन होता है ना, उसका हैबिट होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि ये अच्छी चीज़ें कर रहा है. करेक्ट. So you have to pick up that, because when you get involved as a communication partner, you understand that very well. You work Correct. as partner, underline partner. So you are equally responsible for his failure, equally responsible for his success. Become a part. Don't shed out कि यार मेरा क्या गलती है, मैंने तो अच्छा किया था. नहीं, you are part of it. Then only you continue for 15 years, 16 years, 10 years. Correct. How do they do that? They trust you. Correct. I think this is a one of the best podcasts that I'm ever having. Sir, today a lot of youngsters want to take up this field. What would be your suggestion? What are your thoughts about Gen Zs? Where are they going right? What are the mistakes that they are doing? What would be your suggestion to the Gen Zs who want to come into advertising, branding, or overall building a career? As our entire podcast said, that you have to be curious enough, you have to be a person of learning, you have to have the craft of doing it, you have to know the tools and all that. It is not an easy job, it's just not the creative or the glamour. You have to make sure that a glamour comes at the end. If you talk about Gen Z, there are two extremes. One, Gen Z is excellently smart. I've been meeting such Gen Zs. I learn from them. I get amazed and I feel so happy, so glad that my future is safe, because they are working on software relevant to my industry and they come out with this thought. मैं सोचता हूँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ऐसा. और कुछ होते हैं, they are extremely end. They're not thinking, they're not using their brains, they're not doing that. So the industry will give them the same results the way they think. Right? They will be compensated in the same manner as they really work for it. जो हमारे साथ भी होता था ना, Correct. आपने अच्छा सोचा, आपने अच्छा काम किया तो आपको अच्छा मिला, Yes. उसी तरह से होता है. तो आई एम नॉट thinking they're hopeless. I'm full of hopes for them. Wonderful. Right? Because the people who have thought extreme, they have taught me. आज के तारीख में भी मुझे अगर इंस्टाग्राम में कुछ हैंडल में समझ में नहीं आ रहा, I'll go there, take my pleasure of understanding from them, and I feel so happy कि चलो मैंने आज एक और सीख लिया. Correct. It may called reverse mentoring, right? But you are doing it, you're learning from them, and there is a wisdom which you may have. You teach them. Yes. You teach them how to look into it. They know the tools to do that. You Correct. combine both of them. Correct. Right, and then the future is good that way. Sir, when you recruit, आप क्या देखते हो बंदे को कि आप आपकी इंडस्ट्री में रिक्रूटमेंट के लिए व्हाट आर दोस क्वालिटीज दैट यू लुक इनटू अ पर्सन? Yeah, very good question. This I practiced in my career where I recruited a number of people, and people used to say that you are the face of the organization. So when I used to recruit, I usually don't see how many marks he had. I see his approach, his attitude, his learning capacity, and first of all, ये मंत्रा है, I used to always make them comfortable first. वो एक प्री फॉर्मेटेड नहीं कि वेयर आई टेल मी अबाउट योर सेल्फ और आपने ये एजुकेशन क्यों किया, एंड आई स्टार्ट टेलिंग हिम एंड मेकिंग हिज हैप्पीनेस गो अवे बाय आस्किंग सम ट्रिकी क्वेश्चंस. नो, ही इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ही कम्स विद अ टाई एंड अ कोट एंड एवरीथिंग, एंड ही इज नोइंग कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. उसको प्रैक्टिस कराया जाता है ना कॉलेज में. बट मैं उतना पूछूं कि आने में तकलीफ तो नहीं हुई आपको, बरसात में भीग तो नहीं गया आप, चाय पियोगे आप. The moment I say that, he is becoming comfortable. He'll come out with the truth which he has. Correct. He's not artificial there. The walls will Go crumble. down. And there is no walls between him and me. And I'm talking to him as a friend. And I always believed that जैसे मेरे को उसकी ज़रूरत है ना, उसको भी मेरी ज़रूरत है. दोनों की ज़रूरत हम पूरी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. तो वो जब आया है, उसको मैं नहीं ले रहा हूँ, बट इसका मतलब नहीं कि वो वर्दी नहीं है. वो शायद किसी और चीज़ के लिए वर्दी होगा. Correct. 100%. ही इज़ गिवन हिज टाइम, लाइफ, उसके लाइफ के 15 मिनट और 20 मिनट उसने मुझे दिए, उससे मैंने भी उसको दिए. बट इट मे हैपन ना, मेरा डील शायद नहीं हुआ हो, बट उसका मतलब नहीं खराब है. आई स्टार्ट ह्यूमिलेटिंग मेनी अ टाइम्स. आई सी पीपल स्टार्ट स्क्रूइंग देम, ह्यूमिलेटिंग देम, या उसको ऐसा फील करा देंगे ही इज़ नॉट गुड फॉर एनीथिंग. नो, ही मे नॉट बी गुड फॉर एनीथिंग फॉर मी, बट ही कैन बी गुड फॉर बेटर फॉर एनीबडी एल्स. आई हैव टू मेक श्योर, टेल हिम दैट व्हाई डिडंट आई चूज इट. ओके, आई विल गेट बैक टू यू. आपको लग रहा होगा nobody in the corporate world ever get back to them. है ना, वो बेचारा फ़ोन करता रहता है, 4 बार फ़ोन करेगा, 5वीं बार वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है. तो वो क्या बोलेगा, कंपनी बकवास है.
इमेज तो आपने कंपनी की बर्बाद कर दी ना। आप उसको 2 लाइन लिखो ना, इतना बोलो कि यार आई एम थैंकफुल फॉर योर विजिट हियर एंड यू आर वर्दी, बट फॉर द वैकेंसी व्हिच यू अप्लाइड you are overqualified for that, or we are not able to take you right now, but definitely keep in touch and we'll consider your profile later on. See the feeling he has, see the reputation he has about the company, see the image you are building. And I have to make sure, believe me, recently or many times it happens that I met a person, met a client whom I was signing my agreement with them. After signing the agreement, I was leaving. So this gentleman who was the brand manager of that company was accompanying me to the elevator. Near the elevator, he tells me, sir, मेरा सपना पूरा हो गया. I said, what सपना? बोले कि सर आपके साथ काम करना था. देखो रमेश के हम लोग मिले हैं कभी? I said, yes sir. I said, where? बोलता सर आपने मेरा आज से इंटरव्यू 10 साल पहले लिया था and you rejected me. And he told me the reason. From that day I believed that कभी ना कभी मैं आपके साथ काम करूँगा और मुझे बहुत खुशी है अब हम साथ में काम करेंगे. Super. So जितेन, you hold a responsibility. It's just not advertisement. आपने बड़ा काम कर दिया, वो कर दिया. You are setting up an example to the coming generation. मेरे को मॉल में मिलते हैं और कई बार मुझे ऐसे ही मिलते हैं लोग जिनको मैंने रिजेक्ट किया हुआ. मुझे ऐसे प्रोफेसर मिलते हैं जो बोलते हैं कि अभी रिसेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट हो गए हैं, कि सर यू नो आप हमारे कॉलेज में आए थे, आपने मुझे एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल आज भी मैं बच्चों को देता हूँ. यू होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स जस्ट नॉट मेकिंग माई सेल्फ टेल देम दैट हाउ मच आई नो. No, how much I could reach them, how could I teach them. And I believe in one thing, if somebody is hungry, don't give him a fish, teach him how to fish. Correct. If you do that, आप सक्सेसफुल हो गए यार लाइफ में, आपको अच्छा लगेगा. जब वो आदमी बोलता है ना कि आपको 10 साल पहले मिला था, वो पैसे से आप नहीं ला सकते हो, वो AI से नहीं ला सकते हो. That high you will never get that. I wrote those books because of that. I wrote my 3-4 books not to earn anything out of it. Correct. है ना. वो जब मैंने कंट्रीब्यूट किया और मैंने लोगों तक पहुंचा, लोग बाग फ़ोन करके बोलते हैं कि सर आपकी बुक के कारण मेरी लाइफ चेंज हुई. नो मनी कैन बाय दैट. नो मनी कैन बाय दैट. So I used to get such reviews. I am not boasting about myself, but I feel that okay, कहीं तो मैं थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ हूँ, कहीं मैं किसी की लाइफ में चेंज करने को फ़ायदा तो हुआ है. Correct. So that is very important. And I believe that every professional he is not here to just earn. He is responsible to do something. He is there. नहीं तो मैं आया, मैं जिंदा रहा, मैंने खाना खाया, मैंने करे बनाया, मैं चला गया, कोई याद नहीं करेगा आपको सर. लेकिन आपने किसी की लाइफ में डिफरेंस बनाया, प्लीज़ ट्राई टू डू दैट. कि मेरे एडवर्टाइजिंग से किसी की लाइफ में डिफरेंस आता है, मेक दैट. ये मेरे इंटरेक्शन किसी कस्टमर के साथ होता है. मेरे यहाँ सर मैं आपको बताऊँ जितेन, मेरे करियर में लोगों ने रिज़ाइन तो किए होंगे ना. आते होंगे, रिज़ाइन करते होंगे. मेरा एक ही क्वेश्चन होता था, हैव यू टेकन ए कॉन्शियस डिसीजन? बोला हाँ. डू यू नीड माई हेल्प in understanding this? I should not be greedy, I should not be biased in saying it's his career. करियर के साथ मजाक कभी नहीं. जब वो पूछने आ रहे हैं मुझसे तो आई आस्क देम वेरी अनबायस्डली कि आपको कोई प्रॉब्लम आई है, क्या हुआ है, ओके इफ आई कैन सेटल दैट फाइन, अदरवाइज आई विल मेक श्योर दैट द नेक्स्ट करियर विच इज गोइंग ही शुड बी सक्सेसफुल, बिकॉज उसे बोलना चाहिए मेरे अंडर में ट्रेन हुआ है वो. करेक्ट. ठीक है सर. और वो जो होता है ना, आज एवरी ईयर देयर इज अ डे व्हेन वी ऑल मीट who might have become my competitors, who were once upon a time working with me. 50-60 of them we all get together on a particular day. Wow. All of them have worked someday, some year with me. Super. So that is the asset which I believe है. मैंने करोड़ों नहीं कमाए होंगे यार, लेकिन I don't call away there. Yes. Because मैं लड़के क्या करूँगा सर? सही बात. मैं उसे ह्यूमिलेट करके क्या करूँगा मैं? There is no fun in doing that. But if you could help him in making his career, he will remember you forever. आज के तारीख में भी वो फ़ोन करके बोलते हैं सीनियर पोजीशन में, CEO लेवल पे, कि ऐसा अटक गया तो क्या करना चाहिए यार, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए. आई गिव देम ए जेन्युइन सजेशन. मैं नहीं बोलूँगा कि यार अच्छा वो मेरे वहाँ पे नहीं है इसलिए. नो, यू आर बिल्डिंग योर इमेज ऑल्सो ना. करेक्ट. यू हैव वो दायित्व होता है ना आपका भी. यस. तो क्यों नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप दुनिया को ब्रांड बना रहे हो और आप खुद नहीं सोच रहे हो यार इमेज बनानी. करेक्ट. तो ना अफ्रीका में बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, वॉक एज इफ 1000 ancestors have your back. ये बोलते हैं कि इस तरीके से चलो, इस तरीके से बिहेव करो कि तुम्हारे 1000 पुरखे तुमको देख रहे हैं. हाँ. मैं तो बहुत पर्सनली बहुत फॉलो करता हूँ. और जब आप ऑनेस्ट होगे ना, आपको इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है. यस. आप आराम से चलोगे, आपको कुछ कॉन्शियसली नहीं होना कि मेरे को ऐसा करना है वो करना है. नो, यू बी लाइक दैट. हमारे साथ भी कैसे होता है, बहुत सारे रिक्रूटर्स जो आते हैं, अभी 9 साल में कुछ लोग रिजाइन करके चले गए, वो आज जहाँ भी जाते हैं नाउ दे बिकम कॉर्पोरेट एचआर. तो हमको बोलते सर हम आपके थ्रू हायरिंग करें. तो वो रीजन है ना आपकी. दैट्स योर इमेज. दैट्स माय इमेज. है ना. यू आर नॉट गोइंग टू पुट इट ऑन द होर्डिंग्स. यस.
नहीं। बट जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे काम करना चाहिए ना इमेज. हाँ मैं कम सैलरी में भी काम कर लूंगा हाँ अगर वहाँ पे इमेज अच्छी होगी, उस क्लाइंट का इमेज Correct. अच्छा होगा. करेक्ट. अभी जैसे एग्जाम्पल बताऊँ, देयर वाज दिस गर्ल हु रिजाइंड एंड शी वेंट टू यूके विद हर हस्बैंड. उसके हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया. उनका वो यूके में जॉब लग गया बंदी का. वो 2 साल बाद कॉल आया कि सर मैं यूके में हूँ, अभी यहाँ ज्वाइन करूँ, आई वांट यू टू हायर फॉर माई कंपनी इन यूके. सो मतलब आई फील ब्लेस्ड. मैं आपको नहीं बोला था Yeah. इंटरव्यू से, ये इससे पहले पॉडकास्ट हाँ, कि आई फील आई एम वेरी लकी. या सो हम शायद स्पिरिचुअल बात कर रहे होंगे, हम मॉनिटरिंग बात नहीं कर रहे हैं, हाँ. बट दैट सेटिस्फैक्शन है. Yes, yes, yes. So we are mantras to success. What is one mantra to success that you follow personally? कि जो आपको लगता है कि यार this is something that you do day in day out, or you follow that mantra that keeps you ahead of the competition. I don't say ahead of the competition because I believe that everybody will have their own piece of cake. There is no competition with each other. You do, there are few things which you may be calling it as a spiritual thing, but I believe that you have to be honest enough to do that. Love what you are doing, right? Be very honest in doing whatever you, and be passionate. The moment you are passionate, you become honest and you deliver, Correct. right? So that is very important, and be grounded. I fear when someone introduces me with 4 pages, 3 pages. I should be introduced only 2 lines, because the moment you are introduced that way, it enhances the expectation of the audience. Secondly, you should always understand there are 10,000, 10 crore people who are better than you. So you have to make your mark where you are, and you have to yet achieve. The moment you say that he has done everything, you are giving a feeling that I have achieved everything. I have nothing to learn now. So you have to keep grounded, keep modest in your approach. And the moment you are modest in that feeling, you will learn. Because आपको लगता है कि इससे और कुछ सीख सकते हैं, Correct. है ना? Correct. So that is what you have to do, and I'll tell every individual. It is in Gujarat, I have learnt it like anything. In Ahmedabad, you say ना આપણે માટે શું, Hmm. મારા માટે શું. Hmm. It may be funny, but if you seriously think about it, he's asking me, what can you do for me? Hmm. I might have worked from the best of the brands. It doesn't matter to him. वो स्लाइड लाओ जिस स्लाइड में ये बोला जाए कि मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो, और आपके साथ जुड़ने के बाद मेरे को क्या फ़ायदा होगा. Correct. इफ़ यू कुड आंसर दैट इन योर पिच, यू आर देयर. बाकी आप 25 स्लाइड दिखा दो कि दुनिया में आपने क्या किया, वो ठीक है. वो आपकी तरफ देखेगा कि कब तो इसने तो मुझे सिखा दिया है. हाँ. આપણે માટે શું, माई स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज थॉट कि मैं वर्ड આપણે માટે શું को कैसे जवाब दूंगा. हाँ. अगर वो जवाब दे दिया मैंने, हाँ. उसको बता दिया इज देयर फॉर यू फॉर एजेस, हाँ, उसको बाकी 25 स्लाइड दिखानी नहीं. कोई फर्क नहीं पड़ता उसको. Correct. दुनिया में आपने कुछ भी किया हो, उससे आप जबरदस्ती उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हो. Correct. समझ रहे हो आप? तो Yes. ये फॉर्मूला जो है ना, हैट्स ऑफ टू दिस अहमदाबाद, बिकॉज यू कैन टेक मी आउट ऑफ अहमदाबाद, यू कांट टेक अहमदाबाद आउट ऑफ मी. Yes, yes. Yeah. Sir, one personal mantras to success that you would like to give to the audience. There are few things which I'll say. हाँ. You can say tips, not Tips. tip. हाँ. Yes, you have to be honest, you have to be humble, eager to learn, and be curious. Yes. You will make a good career in advertising. Thank you. Wonderful, wonderful, wonderful.